20 हो गए। महिमा, Yes, sir. Let's start. जी Good evening to all CELA professional members. I, CA Mahima Garg, Deputy Convener, on behalf of Urban Estate Study Circle, welcome you all to this webinar on discussion of Direct Tax proposal, which is introduced in this Union Budget 2022. I would like to introduce CA BD Goyal ji to please proceed further. थैंक यू महिमा, थैंक यू. I CA Bhagwan Das Goyal, convener of our state CP study circle, welcome you all on today's webinar on union budget, and we are having with us very eminent speaker, CA Rajiv Jain ji, and I hope and I can promise and I can assure you all that today's webinar will be very much special, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं बजट के अंदर और बहुत ही हॉट टॉपिक है ये हमारा आज का जो यूनियन बजट का जो डिस्कशन है. आई अगेन वेलकम यू ऑल एंड स्पेशल वेलकम टू अवर गेस्ट स्पीकर सीए राजीव जैन जी. जैन साहब, ओवर टू यू. जैन साहब, काइंडली स्टार्ट योर डेलीब्रेशन. सर जैन साहब. जैन साहब. सीए बीडी गोयल जी, कन्वीनर ऑफ अर्बन स्टेट सीपी स्टडी सर्कल. ये महिमा गर्ग जी, डेप्यूटी कन्वीनर. माय लर्नेड ओल्ड फ्रेंड सीए डीसी गर्ग जी, जुनेजा जी, सिंगला साहब, friends, colleagues, ladies and gentlemen. First of all, I convey my thanks to the entire team of Urban State CP Study Circle. जरा ये अनम्यूट कर दीजिए कि इनका जरा महिमा अनम्यूट करिएगा. ये एमएलए साहब. महिमा, सबको आप म्यूट कर दीजिए. महिमा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप Now it is good. अब ठीक हो गया. Start, sir. So first of all, I convey my thanks to the entire team of Urban State CP Study Circle for inviting me amongst all of you. And today's topic I will be deliberating upon is the direct tax proposals of the Finance Bill 2022, Budget 2022. From the last 2 years, we are all going through the unprecedented phase of COVID. और कोविड ने पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं सबकी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है. एंड अवर फाइनेंस मिनिस्टर वाज फेसिंग a very hilarious task of presenting this budget without imposing much burden upon the taxpayer. And thanks to GST collections, जो इस साल GST collections बढ़नी शुरू हुई, everybody of us was expecting a harsh budget. कोई ऐसा बजट आएगा कि lot of more taxes will be there on the public. But due to buoyancy in GST regime, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया. थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जरूर दिया, बट नो न्यू टैक्स वाज इम्पोज्ड. तो ये इस बजट की सबसे बड़ी खास बात है. बारिंग द फैक्ट दैट डेफिसिट हमारा अभी कंट्रोल में नहीं है, FIRBM की लिमिट हमारी एक्सीड हो गई है. बट इन दिस एक्सेप्शनल सिचुएशन the country has no other option but to proceed with the deficit budget. तो मैं सीधा डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स पे स्विच ओवर करता हूं. और जो अभी हमारा फिलहाल का टाइम है, most of the chartered accountants and professionals of us were affected by notices issued under section 148 after 31st March 21 and before 30th June 2021. We all know that provisions of section 148 were revamped with effect from 1st April 2021, and they were completely replaced. Under the old provisions, notices under section 148 could have been issued up to 6 years or 16 years.
There was a procedure laid down by the Honorable Supreme Court in the case of GK and Drive Shaft. वो प्रोसीजर असेसिंग ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता था, वो नोटिस इशू करता था 148 का, फिर एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करता था, फिर वो रीजंस ऑफ रीओपनिंग मांगता था। रीजंस ऑफ रीओपनिंग जब एसएससी को मिलते थे तो वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करता था, एंड देन प्रोसीडिंग्स वर स्टार्टेड ऑन मेरिट्स, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रोसीडिंग कंप्लीट होती थी। बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 an entirely new regime of section 148 was introduced, और उन्होंने कहा कि सर्च के अलावा प्रीवियसली जो सर्च के केसेस थे उनका जो असेसमेंट होता था दैट वाज अंडर सेक्शन 153 कैपिटल ए एंड 153 कैपिटल सी, आप सबको पता होगा। तो 1 अप्रैल 2021 से व्हाट दे डिड कि उन्होंने पुराने सेक्शन 148 को रिवैम्प कर दिया और 153 कैपिटल ए और 153 सी दोनों को रिप्लेस करके 148 में डाल दिया। यानी कि अगर आपका रीअसेसमेंट होना है तो भी आपका सेक्शन 148 में होगा, आपका सर्च के केसेस का असेसमेंट होगा तो वो भी आपका 148 पे। Previously, cases could have been reopened up to 6 years or 16 years. Now cases can be reopened only up to 3 years or 10 years in exceptional situation. जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो 3 साल का या 10 साल का आपका केस खुल सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। वो 16 साल का प्रोविजन खत्म हो गया। जीके एंड ड्राइव शाफ्ट के केस में जो प्रोसीजर लेट डाउन किया था 148 का, नाउ इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यू प्रोसीजर। अब नए प्रोसीजर में उन्होंने कहा बिफोर द इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 तो असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू एस्केपमेंट ऑफ इनकम, दैट इंफॉर्मेशन will be first contested with the SSC, and SSC will be given an opportunity to participate in the proceedings। और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 148 कैपिटल ए। अब SSC पहले उस प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, then assessing officer will pass an order under section 148 capital A, yes this is a case fit for reopening of reassessment under section 148। और जिस समय वो 148 का नोटिस इशू करेगा तो उसके बाद ये 148 का जो ऑर्डर है ये उसको उस नोटिस के साथ में लगाना पड़ेगा। दिस इज द न्यू प्रोसीजर व्हिच इज नाउ रिप्लेस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब बीच में टोला आया और टोला के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने कहा कि अब जो नया रिजीम है, ये जो नया रिजीम जो 1 अप्रैल से आ रहा है, तो उन्होंने टोला में पुराने रिजीम को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया विदाउट हैविंग सफिशिएंट पावर्स इन द टोला, कि 1 अप्रैल से 30 जून तक पुराने रिजीम का प्रोसीजर फॉलो करके नोटिस इशू किए जा सकते हैं। द मैटर वाज चैलेंज्ड बिफोर द वेरियस हाई कोर्ट्स। सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक के जो नोटिस इशू हुए अंडर द बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ प्रीवियस, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट दिया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया और जितने भी नोटिसेस जो इश्यू हुए थे दे वर क्वैश्ड, और रिट ऑफ सर्सरी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इशू की। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इशू की, उड़ीसा हाईकोर्ट ने इशू की, राजस्थान हाईकोर्ट ने इशू की, और बहुत सारी हाईकोर्ट्स में अभी मामला पेंडिंग है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल कर दी। नाउ मैटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और अब ये सबके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ था, ये जो डिपार्टमेंट की ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है, जरा ये श्याम खंडेलवाल जी को एक बार म्यूट कर दीजिएगा, जरा ये डिस्टर्ब हो रहा है क्या, जरा एक बार करना महिमा जी, श्याम खंडेलवाल जी को म्यूट कर दीजिए जी। तो एक बड़ा क्वेश्चन, हम जितने भी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हमें लगा यार इतने सारे नोटिस जो हाई कोर्ट्स ने क्वैश कर दिए हैं तो गवर्नमेंट इतनी आसानी से तो इसको नहीं छोड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने अपनी फर्स्ट ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ली, दैट दे हैव फाइल्ड एन एसएलपी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एंड वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग कि ये बजट में कोई ना कोई ऐसा चेंज लेकर आएंगे और जो कहीं ना कहीं लॉ में कमी रह गई, लॉ बनाने में कमी रह गई, या तो उन नोटिस को रिवैलिडेट करने के लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट जरूर आएगा। वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग, बट थैंक गॉड
नथिंग ऑफ दैट काइंड फॉर्म पार्ट ऑफ दिस ईयर्स बजट, और उस तरह की कोई भी चीज इस साल के बजट में नहीं आई। और अब मतलब उसका ये है, ये एमएलए साहब का जरा अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो अब इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दैट जजमेंट विल रिमेन फाइनल। अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को, राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को अगर कंफर्म कर देते हैं तो सारे नोटिस क्वैश हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट टेक्स ए डिफरेंट व्यू तो वो सारे के सारे नोटिस रिवाइव हो जाएंगे। तो ये एक फर्स्ट इश्यू जो हमें डिस्कशन करना था 148 से रिलेटेड। अब एक और प्रश्न खड़ा हुआ कि जो बहुत सारे केसेस में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमारे किसी एसएससी के पास कोई नोटिस आ गया। नाउ व्हाट वी शुड डू, हम क्या करें? प्रॉपर तो तरीका ये होता है कि डिपार्टमेंट कुड हैव कम आउट विद अ सर्कुलर कि देखिए साहब, हम दिल्ली हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को फॉलो करते हैं। नाउ मैटर बिकॉज मैटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो अभी फॉर द टाइम बिंग सारे 148 की प्रोसीडिंग्स को रोक देते हैं, और जिस समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा देन ऑल प्रोसीडिंग्स शैल स्टैंड रिवाइव्ड। लेकिन ऐसा कोई सर्कुलर आया है। नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द एसएससी कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई नोटिस आया हो देन यू विल हैव टू गो टू द हाई कोर्ट और वो रिट फाइल करके आप अपने फेवर में उस नोटिस को क्वैश करा लीजिए। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर आपके फेवर में आता है देन नथिंग डूइंग, मैटर इज ओवर। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आपके अगेंस्ट आता है देन योर प्रोसीडिंग्स विल बी रिवाइव्ड। 148 का जो नया रिजीम है ये 1 अप्रैल 2021 से आया, बिकॉज इट वाज अ न्यू रिजीम। और न्यू रिजीम में क्या होता है कि जब भी हम कोई नया परिकल्पना साहब ने लेकर आते हैं देन इट इज सब्जेक्ट टू अवर एक्सपीरियंसेस। और जैसे जैसे हमारे को एक्सपीरियंस होता है तो हम अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं और लॉ को भी अपडेट करते हैं। तो लास्ट ईयर ये सेक्शन आया था 148 और इस साल में इसका पहला अमेंडमेंट भी आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 148 जो करंट सेक्शन है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ये दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है। सर्च का असेसमेंट भी इसी में होगा 153A और 153 कैपिटल सी में जो होता था, और रीओपनिंग और रीअसेसमेंट भी इसी में होगा जो पहले 148 में होता था। तो दोनों सेक्शन के लिए कंबाइंड सेक्शन देखा। अब यहां पर इन्होंने कहा जो सर्च के केसेस हैं उसके केस में आपको 148 कैपिटल ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 148 कैपिटल ए का प्रोसीजर मैंने क्या बताया, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द एस्केपमेंट ऑफ इनकम, दैट इंफॉर्मेशन विल बी फर्स्ट contested with the SSC. He will be given an opportunity to participate before the assessing officer. Assessing officer फिर उस पर जजमेंट पास करेगा whether there is escapement of income or not. और जब वो ऑर्डर पास करेगा तो उसके बाद वो आपको नोटिस अंडर सेक्शन 148 देगा फॉर द पर्पस ऑफ रीअसेसमेंट। ये नया प्रोसीजर। लेकिन सर्च के केसेस में ये 148 कैपिटल ए के प्रोसीजर को रिजॉर्ट करने की असेसिंग ऑफिसर को जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बात बड़ी क्लियर है क्योंकि और 148A में साथ में लिखा कि 148A का जो ऑर्डर पास होगा दैट विल बी पास्ड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। यानी कि असेसिंग ऑफिसर खुद से 148 कैपिटल ए का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन के अंदर जो ड्राफ्टिंग थी वहां पर दे हैव मेंशन्ड कि जो नोटिस इश्यू होगा 148 का इट हैड टू बी इश्यूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो इस जो रॉन्ग ड्राफ्टिंग थी कि 148 कैपिटल ए का ऑर्डर ऑलरेडी बिकॉज इट इज पास्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, तो नोटिस इश्यू करने के लिए आपको दोबारा से स्पेसिफाइड अथॉरिटी की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपने वो 148 कैपिटल ए का ऑर्डर साथ में लगा दिया, दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस। तो 148 ए का प्रोसीजर जिस जिस केसेस में फॉलो हुआ है उस केस में 148 का नोटिस इशू करने से पहले अब आपको स्पेसिफाइड अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये पहला अमेंडमेंट है जो 148 में एप्लीकेबल है और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से। यहां पर उन्होंने कहा कि जो व्हाट विल फॉर्म एज द इंफॉर्मेशन फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम। एस्केपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा कि एसएससी की कोई इंफॉर्मेशन एसएससी के पोर्टल में रिफ्लेक्ट करती है
तो दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम। या फिर उन्होंने कहा कोई सीएजी की ऑब्जेक्शन आ गई, तो दैट विल आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो ये सेक्शन 148 के अंदर ये उन्होंने डिफाइन किया कि व्हाट विल बी डीम्ड एज इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो इसमें अब उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। अब इसका जो सेकंड लिम था, जहां सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर आपका केस रीओपन हो सकता था, तो उस सेक्शन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह व्हाट दे हैव सेड कि कौन कौन सी आइटम होगी विच विल बी डीम्ड एज इंफॉर्मेशन फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम। वन इज ऑडिट ऑब्जेक्शन। ऑडिट ऑब्जेक्शन जो हमें अभी तक पता है कि सीआईटी की बिहाफ पे ऑडिट होता है असेसमेंट रिकॉर्ड का, और कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आती है, देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज पावर अंडर सेक्शन 263 टू रिवाइज दैट ऑर्डर। ठीक है ना? 148 में असेसिंग ऑफिसर कुड नॉट रिव्यू और रिवाइज हिज ओन ऑर्डर, लेकिन यहां पर अब 1 अप्रैल 2022 से ऑडिट ऑब्जेक्शन के केस में आपका 148 हो सकता है। यानी कि ऑडिट ऑब्जेक्शन के केस में नाउ देयर आर 2 avenues which are available to the department. First is revision under section 263 and the second is reassessment under section 148. हालांकि it will become, in my opinion, it will become matter of litigation whether issue of notice under section 148 on the basis of audit objection by the same assessing officer will amount to review or revision of his own order which is not permitted in law. तो इस लिटिगेशन की इसमें गुंजाइश। साथ में उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर सेक्शन 90 और 90 कैपिटल ए, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन आती है, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई, तो दैट विल आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम। थर्ड आइटम इन्होंने ऐड की, एनी इंफॉर्मेशन received under section 135 capital A. 135 capital A faceless collection of information के लिए this section was introduced with effect from 1st April 2021 और उसमें CBDT को एक स्कीम नोटिफाई करनी थी for the purpose of faceless collection of information under section 133 capital A और 133 capital B or in the manner to be prescribed in the scheme। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 13 दिसंबर 2021 को ये फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको ई वेरिफिकेशन स्कीम का नाम दिया है, ये स्कीम नोटिफाई हो गई है और इस स्कीम के हिसाब से डिपार्टमेंट के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी पर्टेनिंग टू द एसएससी, इट विल फॉर्म द बेसिस फॉर एलिजिंग एस्केपमेंट ऑफ इनकम। फोर्थ, इसमें उन्होंने कहा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्राइब्यूनल और कोर्ट ऑर्डर। और यहां पर जब उन्होंने वर्ड ट्राइब्यूनल और कोर्ट यूज किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। इट मींस किसी भी कोर्ट का ऑर्डर या किसी भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, इफ इट कंटेन्स अ फाइंडिंग दैट अ पर्टिकुलर इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन द हैंड्स ऑफ एनी एसएससी, देन इट विल आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 148। तो ये 148 के अमेंडमेंट हुए। एक छोटा सा अमेंडमेंट किया इन्होंने 148 कैपिटल बी, एक नया सेक्शन लेकर आए 1 अप्रैल 2022 से। उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 है, ये जेसीआईटी से नीचे वाला कोई ऑफिसर पास नहीं कर सकता, और अगर कोई नीचे वाला ऑफिसर पास करेगा देन इट हैज टू बी पास्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 149, अभी हमने पढ़ा कि 3 साल तक का आप केस खोल सकते हैं। फिर जो दूसरी लिमिट थी वो बियॉन्ड 3 इयर्स अप टू 10 इयर्स। लेकिन बियॉन्ड 3 इयर्स अप टू 10 इयर्स व्हेन यू विल बी एबल टू ओपन द केस, जब आपकी एस्केपमेंट ऑफ इनकम इन अ पर्टिकुलर ईयर एक्सीड्स ₹50 लाख। एंड देयर वाज सेकंड कंडीशन दैट इट शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय एसेट। तो हमें एक प्लेन अंडरस्टैंडिंग में इसका ये मतलब समझ में आया
नाउ द डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द रिकवरी ऑफ डिमांड. अब हमने कहा कि देयर इज एन इंफॉर्मेशन ऑफ एस्केपमेंट ऑफ इनकम बियॉन्ड 3 years which is represented by an asset. इसका मतलब ये हुआ कि whenever an assessment will be completed, then there will be chances of recovery. तो ये हमारे को बात समझ में आई कि इस अमेंडमेंट का अब ये मतलब ये है कि 10 साल का हम तब खोलेंगे जब हमारे पास डिमांड रिकवरी होने के चांसेस हो. हम एक फिक्टिशियस डिमांड निकाल के असेसमेंट कंप्लीट करके बैठे हैं, असेसमेंट की डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाए एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ रिकवरी, तो इस तरह के असेसमेंट खोलने का कोई पर्पस नहीं है, इस तरह के रीअसेसमेंट कंप्लीट करने का कोई पर्पस नहीं है. ये हमने पिछली बार समझा था, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दिया. पहले उन्होंने कहा था एस्केप्ड इनकम शुड हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय एन एसेट. अब वो कहते हैं इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एन इवेंट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंट्री, तब भी आपका केस वो हम खोल सकते हैं. और पहले जो कंडीशन थी 50 लाख रुपए की, वो पर असेसमेंट ईयर थी. अब उन्होंने कहा कि कोई एक्सपेंडिचर है और वो 3 साल में भी हो रहा है और वो 50 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, इट इज ट्रेवलिंग टू 3 असेसमेंट ईयर्स, तो आपका 3 साल का असेसमेंट खोल लेंगे. तो 50 लाख रुपए की जो 1 साल की लिमिट थी, अब वो 3 सालों में डाइल्यूट हो गई. अगर 50 लाख रुपए का आपका एक्सपेंडिचर अगर 4 सालों में या 5 सालों में है, तो भी आपका केस रीओपन कर लेंगे, राइट. तो एंट्री तो उसी साल की होगी. आपकी बुक्स में एस्केपमेंट ऑफ इनकम है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंट्री, तो एंट्री तो उसके सामने उसी साल में हो सकती है. लेकिन एक्सपेंडिचर उस इनकम का 1 से ज्यादा सालों में हो सकता है. इन्वेस्टमेंट इन एसेट उसका 1 से ज्यादा साल में हो सकता है. तो व्हेनेवर दिस अमाउंट ऑफ 50 लाख एक एसेट का 1 साल से ज्यादा में ट्रेवल कर रहा है, तो अब इस 1 अप्रैल 2022 से सेक्शन 149 में पावर दे दी है कि उन सारे सालों का केस वो सेक्शन 149 में खोल सकते हैं. तो 50 लाख रुपए की जो लिमिट थी एस्केपमेंट ऑफ इनकम की, 10 साल का केस खोलने के लिए वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई. ठीक है सर. तो ये सारे अमेंडमेंट आए सेक्शन 148 में. इनके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट आए सेक्शन 132 में, 132 कैपिटल बी में, 153, 153 बी में और सेक्शन 271 डबल ए बी में. अब हम आगे बढ़ते हैं सर. ये हमारा रीअसेसमेंट का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया. और आप लोगों का किसी का क्वेश्चन अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हो, तो जिस समय हम उस टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसी समय अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है सर. अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट अमेंडमेंट. नेक्स्ट अमेंडमेंट की हम बात करते हैं. पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी, 271 डबल ए सी एंड 271 डबल ए बी. प्रीवियसली जब आप पेनल्टी के रिजीम को हम पढ़ते हैं, व्हाट वी फाइंड कि जैसे सेक्शन 271(1)(c) की पेनल्टी है या सेक्शन 270 कैपिटल ए की पेनल्टी है. अब तो जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की उसकी पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगाएगा. अब जो एडिशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने की उसकी पेनल्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स लगाएगा. बिकॉज जो पहली अपीलेट अथॉरिटी है, जो कमिश्नर अपील है, he has got the power of enhancement of assessment. जो CIT अपील है वहां सिर्फ रिलीफ डायरेक्टमेंट बंद कीजिएगा सर. ये हो गया सर. डन. प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. जो CIT अपील के पास पावर है, उसके पास आपके एनहेंसमेंट ऑफ असेसमेंट की पावर है. जनरली जब आप ट्राइब्यूनल में अपील फाइल करते हैं तो देयर इज ओनली वन वे, आइदर यू विल गेट अ रिलीफ और योर अपील विल बी डिसमिस्ड. इफ यू फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट, तो दैट इज ओनली वन वे. या तो आपको अपील डिसमिस हो जाएगी, आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपका बुरा कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. इन द सेम मैनर इफ यू गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो आपका बुरा कुछ नहीं हो सकता. आपकी एडवर्स सिचुएशन ये है कि आपकी अपील डिसमिस हो जाएगी, नथिंग मोर देन दैट, राइट. ये थोड़ी बहुत कभी कोर्ट कभी आपसे ज्यादा नाराज हो गई तो आपके ऊपर कॉस्ट लगा दी, नॉट बियॉन्ड दैट. लेकिन CIT अपील के पास पावर है आपका असेसमेंट एनहेंस करने की. तो देयर में भी सिचुएशन कि आपके केसेस में जो एडिशन है, दीज आर मेड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स. तो ये 3 सेक्शनों में जो पेनल्टी लगाने की पावर थी वो सिर्फ असेसिंग ऑफिसर के पास थी, कमिश्नर के पास पावर नहीं थी. तो इन तीनों में ये ड्राफ्टिंग एरर था. अब उस कमी को उन्होंने दूर कर दिया है 1 अप्रैल 2022 से. अब जो कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स है, बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजरल सेक्शन, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद CIT अपील जो भी ऑर्डर पास करेगा
now he will be able to impose penalty under these three section 271 AAB, जिसमें पेनल्टी लगती है सर्च के केस में। अगर आपने सर्च के टाइम पे सरेंडर कर दिया, बता दिया आपने कैसे आपने अनडिस्क्लोज इनकम कमाई है तो 10% पेनल्टी, रिटर्न भरने के टाइम पे अगर आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज की है तो 20% पेनल्टी, और अगर आपके केस में एडिशन हो गई है तो 60% पेनल्टी। ठीक है, सेक्शन 68 69 के केस में आपको 10% पेनल्टी, और सेक्शन 271 AAD विच इज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऐसे सिचुएशन में अमाउंट ऑफ द एंट्री आपको पेनल्टी लगती है। तो ये तीनों पेनल्टी अब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील लगा सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। अभी तक जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं 139(1) में हम रिटर्न फाइल करते हैं जो ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड है विद इन द ड्यू डेट। 139(4) में हम रिटर्न फाइल करते हैं बिलेटेड रिटर्न, जो ड्यू डेट के बाद फाइल करनी होती है। उसकी लास्ट डेट क्या है? अब है असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले, यानी 31 दिसंबर। असेसमेंट ईयर 21-22 की कोविड के लिए बढ़ा दी है डेट, वो एक अलग बात है, लेकिन लीगल प्रोविजन की हम बात करें दैट इज 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि जो असेसमेंट ईयर अगर 21-22 है तो उसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर। असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो उसकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2022। राइट, तो ये है सेक्शन 139(4). और तीसरा है 139(5) कि जहां पहले मैंने अपनी एक रिटर्न फाइल कर दी, देन आफ्टर नोटिसिंग सर्टेन ओमिशन और मिस्टेक्स देयरइन आई गो एंड रिवाइज फाइल माय रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। तो मेरी रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(5) में मेरी रिवाइज रिटर्न फाइल होती है। ठीक है सर। अब सपोज कीजिए मेरा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया, और एसएससी को लगा कि मेरे रिटर्न में या तो कोई गलती हो गई या मेरी टैक्सेबल इनकम थी, एंड आई failed to file my return of income. Now what is the recourse available to the SSC? तो there was absolutely no recourse। और जब भी हमारे पास कोई आता था तो हम उनसे कहते थे भाई आप एक काम करिए, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाइए और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको डिस्चार्ज करके आप टैक्स जमा करा दीजिए, और कल को अगर कल को कोई 148 का नोटिस आएगा तो वो कह देंगे बिकॉज एसएससी डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन फॉर इवेडिंग द टैक्स और मेरी टैक्स लायबिलिटी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो मुझे उसमें फिर पेनल्टी नहीं लगती। तो ये एक रास्ता हमारे पास बचता था। अब डिपार्टमेंट के पास एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म हो गया है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का। डिपार्टमेंट ने अपना सेटअप भी डेवलप कर लिया, बहुत सारी एआईआर की रिटर्नें डिपार्टमेंट के पास आती हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सोर्सेज है डिपार्टमेंट के जहां से उनके पास इंफॉर्मेशन एसएससी से रिलेटेड आती है। जैसे कभी आप अपना सिविल स्कोर देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपके सिविल स्कोर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि हो सकता है आप भी भूल गए होंगे मैंने कभी कोई बैंक अकाउंट खुलवाया था, लेकिन आपके सिविल इंफॉर्मेशन में आ रहा होगा। इन द सेम मैनर आज की डेट में जो आपका 26AS जब आप देखते हो या टिस आप देखते हो या एआईआर आप देखते हो, यू विल फाइंड कि एसएससी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट्स के अंदर आती है। और इस साल पर्टिकुलरली वाइल फाइलिंग अवर रिटर्न ऑफ इनकम हमने हर एक एसएससी के केस में उस एआईआर की इंफॉर्मेशन को या 26AS की इंफॉर्मेशन को या टीआईएस की इंफॉर्मेशन को हमने देखा और उसके हिसाब से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ठीक कर लिया। अगर कहीं कोई ट्रांजेक्शन छूट रही थी तो हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वी हैड 2 ऑप्शंस, या तो हम उस ट्रांजेक्शन को डिसोन कर दें कि दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट परटेन्स टू मी और दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट बिलोंग टू मी, अदरवाइज या फिर मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उन ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉरवर्ड। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि चलो एक अपॉर्चुनिटी और देते हैं एसएससी को कि इन केस अगर उसकी कोई इनकम छूट गई है, उससे कोई ओमिशन हो गई है या रिटर्न फाइल करने से रह गई है, तो अब आपको 2 साल का पीरियड और दे दिया है रिटर्न फाइल करने के लिए। और नया सेक्शन लेकर आए हैं सेक्शन 139(8)A, और इस रिटर्न को उन्होंने नाम दिया अपडेटेड रिटर्न। तो पहले जो रिटर्न थी बिलेटेड रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, और अभी चौथी आ गई आपकी अपडेटेड रिटर्न। यानी 1 अप्रैल 2022 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक अब आप असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 दोनों साल की आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं बाय पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स। आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आप एडिशनल टैक्स ऑफर करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दीजिए एंड यू विल बी फ्री।
तो ये बड़ा वेलकम प्रोविजन है जो इस साल से आया है। और इसमें कौन कौन लोग ये अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएंगे? जिन लोगों के यहाँ सर्च हो गई है अंडर सेक्शन 132, जिन लोगों के यहाँ सर्वे हो गया अंडर सेक्शन 133 कैपिटल ए, या किसी और के यहाँ सर्च हो गई है और वहां एक एसएससी का मनी बुलियन और वैल्यूएबल आर्टिकल कोई मिल गया है, तो वो ये अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएगा। किसी और के यहाँ सर्च हो गई है, वहां पर एसएससी का कोई डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल गए हैं, तो वो भी ये अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाएगा। एक और कंडीशन इसमें साथ में ये लगाई दैट दिस अपडेटेड रिटर्न इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें कंडीशन लगाई कि अगर आपका कोई असेसमेंट पेंडिंग है, ऑलरेडी अंडर सेक्शन 143 प्रोसीडिंग पेंडिंग है, 148 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, 263 की प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट इनिशिएट हो गई, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइल योर अपडेटेड रिटर्न। और साथ में असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई अंडर द स्मगलर्स एक्ट, बेनामी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट, और वो इंफॉर्मेशन उसने एसएससी को एक बार कम्युनिकेट कर दी, तब भी वो एसएससी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ठीक है सर। आपको असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई अंडर सेक्शन 90 और 90 कैपिटल ए, और वो इंफॉर्मेशन उसने एसएससी को कम्युनिकेट कर दी, देन ही विल नॉट बी एबल टू फाइल हिज अपडेटेड रिटर्न, राइट। किसी एसएससी के केस में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया और वो केसेस दैट विल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, वो लोग अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इसमें एडिशनल टैक्स पे करना है। अब वो एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे, तो उसका उन्होंने फार्मूला दे दिया। उन्होंने कहा अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विदिन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ और उसमें 24 महीने ऐड कर दें, तो 31 मार्च 2023 तक मैं असेसमेंट ईयर 2021 की अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, ठीक। अब उन्होंने कहा ये रिटर्न यदि आपने 12 महीने में फाइल कर दी विदिन 12 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि अगर मैं असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करूं और 21-22 की रिटर्न यदि मैंने 31 मार्च 2023 तक भर दी, तो मुझे 25% एडिशनल टैक्स देना है, और 31 मार्च 2023 के बाद भरूंगा तो फिर मुझे 50% एडिशनल टैक्स देना, ठीक है। अभी एडिशनल टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी तो आप क्या कीजिए, अपनी पूरी इनकम कंप्यूट कर लीजिए, उस पर टैक्स कंप्यूट कर लीजिए, उसमें से जो आपने एडवांस टैक्स दिया है वो आप रिड्यूस कर लीजिए, जितना आपका टीडीएस और टीसीएस है वो आप रिड्यूस कर लीजिए, आपका कोई सेक्शन 90 कैपिटल ए का बेनिफिट है तो वो आप रिड्यूस कर लीजिए, आपका कोई मैट क्रेडिट है तो वो आप रिड्यूस कर लीजिए, पूरा इंटरेस्ट लगा दीजिए। वो जो आपका टोटल टैक्स पेबल अब आया, उस टैक्स पेबल के ऊपर प्लस 25% और 50%, ठीक है। एक एग्जाम, अब यहां पर जो मिसिंग किया उन्होंने क्या किया, मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास कोई पुराना एसएससी आता है जिसकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने का या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल गया, तो हम उससे बोलते थे भाई अपना टैक्स जमा करा के छोड़ दे। अब यहाँ पर ये जो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, दे आर ओनली गिविंग मी क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स। तो जो मैंने अपना टैक्स 140 कैपिटल ए में सेल्फ असेसमेंट कराया होगा 31 मार्च के बाद, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलता, ठीक है। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। सपोज कीजिए आई एम एन एसएससी जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है। अब मेरी 1 करोड़ रुपए की इनकम है और 1 करोड़ रुपए पर 30 लाख रुपए मेरा टैक्स है, ठीक है जी। 15 लाख रुपए मेरा एडवांस टैक्स है, 2 लाख रुपए मेरा टीडीएस है और 4 लाख रुपए मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जो मैंने 31 मार्च के यानी फाइनेंशियल ईयर एड होने के बाद जमा कराया। एडवांस टैक्स को डिफाइन किया हुआ है कि जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स जमा होता है दैट विल बी एडवांस टैक्स। अगर 31 मार्च के बाद कोई टैक्स जमा होगा वो 140 कैपिटल ए में जाएगा, वो एडवांस टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब इस सिचुएशन में मैंने देखा मेरी 30 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आई, 3 लाख रुपए मान लेता हूं मेरे को इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, यानी मेरी टोटल लाइबिलिटी होगी 33 लाख। 15 लाख रुपए मेरा एडवांस टैक्स गया, 2 लाख रुपए मेरा टीडीएस गया और 4 लाख रुपए मेरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स गया। तो यहां पर इस प्रोविजन के हिसाब से मुझे सिर्फ 17 लाख रुपए क्रेडिट मिलेगा, जो 15 लाख रुपए एडवांस टैक्स है और जो 2 लाख रुपए टीडीएस है। जो 4 लाख रुपए मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा,
राइट। तो अब मेरी टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटी हो गई 16 लाख रुपए बची। 33 लाख रुपए थी, 30 लाख रुपए टैक्स, 3 लाख रुपए ब्याज, 15 लाख रुपए एडवांस टैक्स का क्रेडिट मिल गया, 2 लाख रुपए टीडीएस का क्रेडिट मिल गया, मेरी नेट लाइबिलिटी बची 16 लाख रुपए। अब इस 16 लाख रुपए पे 25% या 50%, बात समझ में आ गई? ये मेरा एडिशनल टैक्स होगा। यानी जब मैं 16 लाख की कंपटीशन करूंगा उसमें 234 ए बी सी जितने भी मेरा इंटरेस्ट है वो सारे इंटरेस्ट में लगाऊंगा, ठीक है सर। तो ये मेरी अपडेटेड रिटर्न होगी। और अगर मैंने पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रखी है और उसके बाद में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में जो मेरा ऑलरेडी सेक्शन 140 कैपिटल ए में जो मेरा टैक्स चार्ज हो चुका, ठीक है, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। जो मैं एडिशनल इनकम ऑफर कर रहा हूं उसमें कोई मेरा टीडीएस कटा हुआ तो उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। जो मैं एडिशनल इनकम ऑफर कर रहा हूं उससे रिलेटेड कोई मेरा मैट का क्रेडिट है या उससे रिलेटेड में कोई मेरा कोई सेक्शन 90 या 90 कैपिटल ए का क्रेडिट है तो वो क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोविजन है दिस इज अ वेलकम प्रोविजन। और उन लोगों के लिए जिन लोगों के कोई इनकम टैक्स रिटर्न छूट गई है, नाउ वी हैव गॉट 2 more additional years to file our return of income। और बहुत सारे जेन्युइन केसेस में जहां रिटर्न फाइल करने से मिस हो जाती हैं तो विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी आप 25% एडिशनल टैक्स देके अपनी इनकम ऑफर कर सकते हो एंड यू कैन रेगुलराइज योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो इस सेक्शन के जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है दैट इज अंडर सेक्शन 144, 153, 234A, 234B एंड 276CC। तो ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट अमेंडमेंट हम डील करते हैं सेक्शन 158AB। ये लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए अमेंडमेंट आया है। प्रीवियसली देयर एग्जिस्टेड अ सेक्शन 158AA, तो 158AA को इस साल से ओमिट कर दिया है एंड नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेक्शन 1158AB। पहले क्या था कि अगर एसएससी का कोई केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ द प्रीवियस ईयर इज पेंडिंग बिफोर ए सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और वही सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ मेरे किसी सब्सिक्वेंट ईयर में अराइज होता है, तो उन सिचुएशन में प्रिंसिपल सीआईटी के पास पावर थी कि वो एसएससी से कंसेंट लेके और उस साल की अपील फाइल ना करे। और उस साल की अपील फिर डिपार्टमेंट तब फाइल करेगा व्हेन क्वेश्चन विल बी अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर एसएससी के फेवर में डिसाइड हो गया तो एसएससी को रिलीफ मिल जाएगा, एसएससी के अगेंस्ट डिसाइड हो गया तो वो अपील को पेंडिंग रखते हैं। अब इसका स्कोप उन्होंने बड़ा कर दिया है, 158AB ले आए हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है, जो एसएससी के केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है and that question of law is pending either in the case of the SSC or in any other case before any high court or supreme court। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है तो एक कॉलेजियम बनाएंगे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का और वो जुरिडिक्शनल पीसीआईटी को अपनी एडवाइस देगा कि साहब ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये फला सुप्रीम कोर्ट में या फला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसके केस अभी कोई अपील डिपार्टमेंट फाइल ना करे और एसएससी से कंसेंट ले ले। तो फिर असेसिंग ऑफिसर एसएससी से कंसेंट ले लेगा, देन असेसिंग ऑफिसर विल नॉट फाइल एनी अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर और उसकी अपील अल्टीमेटली फाइल होगी जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ अल्टीमेटली डिसाइड हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपील फाइल होगी। तो दिस इज ए वेलकम प्रोविजन और ये स्कोप ऑफ लिटिगेशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि डिपार्टमेंट अपील फाइल करे या एसएससी फाइल करे, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इज ऑलवेज देयर फॉर द डिपार्टमेंट एज वेल एज द एसएससी। तो ये एक वेलकम स्टेप है। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है दैट इज अंडर सेक्शन 40A(2). अभी पीछे मुंबई हाई कोर्ट का सेसा गोवा के केस में, सेसा गोवा वर्सेस जेसीआईटी 423 ITR 426, उन्होंने कहा है कि सेक्शन 40(a)(2) जो सेक्शन है विच डिफाइंस टैक्स, वो कहता है कि टैक्स इज नॉट एन अलाउएबल डिडक्शन। तो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि सब जब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स ओनली मींस इनकम टैक्स एंड सरचार्ज एंड इंटरेस्ट देयरअपॉन, but it does not include the amount of education or education cess or secondary higher education cess। तो based upon that judgment बहुत सारे लोगों ने इस एजुकेशन सेस को और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस को अपने P&L में डेबिट करके उसकी डिडक्शन लेनी शुरू कर दी।
राइट गर्ग साहब? तो बहुत सारे लोगों ने सेसा गोवा का जजमेंट आने के बाद, गर्ग साहब आप अपना खोल लो, अपना अनम्यूट कर लो आप। तो सेसा गोवा का जजमेंट आने के बाद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने क्लाइंटों को एडवाइस किया कि साहब ये एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन P&L में डेबिट करो और उसके छूट करो। और बहुत किया इन्होंने भी। जहां जहां इस तरह का अमाउंट बड़ा सब्सटेंशियल था, वहां लोगों ने इसकी खूब डिडक्शन क्लेम की। हमें भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन बात हमारे कुछ गले से उतरी नहीं, तो हमने तो इसका डिडक्शन लिया नहीं। खैर, लेकिन अब लॉ ले आए हैं सर, एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया है, एक्सप्लेनेशन 3 ले आए हैं 40 स्मॉल a 2 के अंदर, और ये ले आए विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2005-6, जब से एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगा था। अब उन्होंने कह दिया साहब ये एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है, दिस इज टैक्स, दिस इज नथिंग बट टैक्स, तो इसकी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने भी इस जजमेंट के बेस पे डिडक्शन क्लेम कर ली होगी, अब दे शुड बी रेडी टू फेस द रिस्क फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 और रिवीजन अंडर सेक्शन 263 और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 148। तो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेक्स की आपको किसी भी कीमत पे छूट और डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैन साहब ये रेट्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा है? रेट्रोस्पेक्टिव है सर, असेसमेंट 2005-6 से। हाँ, ये तो मुश्किल हो जाएगा फिर। वैसे लॉजिकली तो ठीक है, क्लेम करना बनता नहीं था। हाँ बे, हमने तो किया नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा, हमने तो किसी भी केस में क्लेम नहीं किया, लॉजिकली नहीं बनता था। हाँ, हमने तो किसी भी केस में क्लेम नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर लिया है, क्या था, हमने भी करवाया था नहीं वो। तो उस केस में अब आपको रेक्टिफिकेशन या रिवीजन जो भी आ जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा वो आ जाएगा। अगर पकड़ में आया, नहीं पकड़ में आया तो छूट भी हाँ, जाएगा। वही। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 14 कैपिटल A, और मुझे लगता है सेक्शन 68 के बाद वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड लिटिगेटेड सेक्शन इज सेक्शन 140, सेक्शन 14 है, जो एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट जो आपके एक्सपेंडिचर की डिसअलाउंस हुई। और ये ज्यादा लिटिगेटेड तब हो गया जब रूल 8D आया, जिन्होंने डीम्ड डिसअलाउंस आपकी प्रिजम्पशन के बेस पे डिसअलाउंस करना शुरू कर दिया, राइट? अगर कॉन्सेप्चुअली बात को समझें तो देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर है तो देन इट हैज टू बी डिसअलाउड, और जो टैक्सेबल इनकम है उसके अगेंस्ट जो मुझे एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, इट शुड ओनली रिलेट टू माय अर्निंग ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम सब लोग समझते हैं और सब मानते हैं, और हमारी अकाउंटिंग का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्सेप्चुअली इस बात को एक्सेप्ट करते हुए भी प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी बिकॉज नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन तो आपका एक था, एंड इट वाज गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, सम ऑफ विच वर टैक्सेबल एंड सम ऑफ विच वर एग्जेम्प्ट। अब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स किया, तो पहले क्या था, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग रहा था और डिविडेंड एसएससी के हाथ में टैक्स फ्री था। आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो टैक्सेबल था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री था। यानी एक आपकी ट्रांजेक्शन है ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इन शेयर्स, नाउ इट इज गिविंग राइज टू 3 टाइप्स ऑफ इनकम। एक आपका डिविडेंड हो गया, एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और तीनों की टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। एक आपकी एग्जेम्प्ट है, एक में आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग रहा है, और एक आपकी एसएससी के हाथ में टैक्सेबल है। अब इस सिचुएशन में आप कितना खर्चा डिसअलाउ करोगे और उसको कैसे वर्कआउट करोगे, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अब सब कुछ सीधा हो गया है। अब डिविडेंड एसएससी के हाथ में टैक्सेबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल है। ठीक है ना, अब इस साल से सिचुएशन बदली हुई है, सभी कुछ टैक्सेबल है, तो कोई आइटम आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अब उन्होंने कॉन्सेप्चुअली इस बात को दोबारा से रिअफर्म कर दिया है कि साहब 14A की डिसअलाउंस, जो 14A का पर्पस है वो सिंपल सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका एग्जेम्प्ट इनकम की अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर है विच इज डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो वो आपका अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है। कॉन्सेप्चुअली इसमें हमें पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप अननेसेसरली की डीम्ड डिसअलाउंस जो अंडर रूल 8D आप कर रहे थे उस तरह की कोई डिसअलाउंस मत करिए। आप स्पेसिफिक फाइंडिंग रिकॉर्ड करिए कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एसएससी व्हिच रिलेट्स टू अर्निंग ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम, तो वो मेरा डिसअलाउ हो जाए तो उसमें कोई इश्यू किसी प्रकार का नहीं है।
तो ये लेकिन जैन साहब आई डू हैव डिफरेंट व्यू, बिकॉज ये इन्होंने सेटल्ड पोजीशन को अनसेटल्ड कर दिया है। यू सी नहीं, अब सिचुएशन भी चेंज हो गई गर्ग साहब ना, मैंने नहीं, वो वाली बात तो सही है, वो बात तो सही है, लेकिन अब क्या होगा, लिटिगेशन फिर हो जाएगा। अब तो क्या होगा कि अब चांसेस कम है लिटिगेशन के। अब पीछे पीछे कई कोर्ट्स ने ऐसे भी कहा था कि जितना आपका एग्जेम्प्ट इनकम मिली टू दैट एक्सटेंट आप डिसअलाउ कर लो। एक्चुअली वो सेक्शन की ड्राफ्टिंग इस प्रकार की थी। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स गिवन इन द लॉ। जो एग्जैक्ट वर्ड है उसके हिसाब से क्या था कि अगर एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो डिसअलाउंस नहीं हो सकती। हाँ ठीक है। तो अब तो क्या होगा कि मेरी इनकम आ रही है मेरी, सपोज करो लाख, और डिसअलाउंस हो जाएगा मेरा 10 लाख। लेकिन फिर भी प्रीवियसली पिछले रिजीम जितना लिटिगेटेड तो नहीं होगा, लिटिगेशन विल मे कम हियर, इसमें कोई एब्सोल्युटली डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी इतना मुश्किल पिछले जितना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अब तीनों इनकम टैक्सेबल है, डिविडेंड भी मेरे हाथ में टैक्सेबल है, ठीक है ना। अभी डिसअलाउंस भी मेनली किस चीज की थी, शेयर इन, आपकी जो डिसअलाउंस हो रही थी व्हेनेवर देयर वाज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, व्हेनेवर देयर वाज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और आपको डिविडेंड इनकम आ रहा था तो आपकी डिसअलाउंस हो रही थी, ठीक है ना सर। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स करूंगा तो मेरा डिविडेंड भी टैक्सेबल है। नो, जैसा क्वेश्चन वहां तक तो ठीक है। अब ये आएगा कि मेरा डिविडेंड और ये सब जो टैक्सेबल इनकम है राइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी कम है, डिसअलाउंस मेरी ज्यादा हो जाएगी। वहां पे अब डिसअलाउंस हो ही नहीं सकती ना, सब कुछ टैक्सेबल है सर, एग्जेम्प्ट है ही नहीं कुछ। नहीं सर, अब डिसअलाउंस कैसे होगी? वो डिसअलाउंस इसलिए हो जाएगी ना, सपोज करो अगर रूल रेट ही लगा देंगे, वो उन्होंने एक आपको याद है 14 कैसे लगा देंगे? 14 आज के डेट में आई एम नॉट अर्निंग एनी एग्जेम्प्ट इनकम आउट ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। जैन साहब मैं दूसरा बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने एक सर्कुलर 5 आया था 14 में, उनको उस वाले सर्कुलर को इन्होंने कहा कि ये वैलिड है। वो वाला सर्कुलर कई सारे कोर्ट्स ने कहा था कि ये वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको ही इन्होंने वो किया है कि उस पर वेट रखने के लिए कहा कि ये चलो लेट अस सी हाउ थिंग्स विल कम आउट इन फ्यूचर। लेकिन बस ये अमेंडमेंट और ये एक्सप्लेनेशन दोबारा से रिफॉर्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, और जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था कैमिन वेस्ट के केस में, जी एक तरह से आप समझिए उस केस को अब डाइल्यूट कर दिया। बिल्कुल जी। द नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 28 सब क्लॉज 4। यह आया था 1964 में, और इसमें लिखा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी अगर वो किसी को परक्विजिट या बेनिफिट देता है तो दैट बेनिफिट और परक्विजिट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। ये सेक्शन 28 क्लॉज 4 ये 1964 से स्टैट्यूट बुक्स के अंदर है, ठीक है सर। अभी ये जो अमेंडमेंट लेकर आए, इसका जो मुख्य रीजन है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, तो डॉक्टर्स को जो है बहुत सारे बेनिफिट्स और परक्विजिट्स मिलते हैं फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज और हॉस्पिटल्स, और कमीशन मिलती है, ठीक है। और वो डॉक्टर अपने हाथ में उस पर टैक्स नहीं देते। फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको सिंगापुर घुमा के लाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको बैंकॉक घुमा के लाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको घर में गाड़ी दे जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको बहुत सारे गिफ्ट देके चली जाती है। सो दोज आर द बेनिफिट्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। और वो कंपनियां ने तो अपनी खर्चा उसको क्लेम कर लिया, बट दीज परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स were never taxed in the hand of the recipient despite of existence of section 28 clause 4 into the statute since 1964। ये टैक्स नहीं हो रहा था। और दूसरा क्या गया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन में उन्होंने डॉक्टर्स को किसी भी प्रकार की गिफ्ट, बेनिफिट और परक्विजिट एक्सेप्ट करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट बताया कि कोई डॉक्टर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कई हॉस्पिटल्स का और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का केस जब कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि सर ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन अ हॉस्पिटल और अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, दे आर ओनली एप्लीकेबल ऑन डॉक्टर्स। तो हमारे ऊपर तो अप्लाई नहीं करती, तो उनको इलीगल है तो वो जाने, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट इज जेन्युइनली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ माय बिजनेस, तो इट इज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर। और कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है इट इज नॉट हिट बाय एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37। सेक्शन 37 में कहा कि कोई ऐसा खर्चा आपने कर लिया विच इज एन ऑफेंस इन लॉ
तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो अब उन्होंने कहा कि किसी का भी कोई भी रेगुलेशन में अगर कोई खर्चा अलाउबल नहीं है, ऑफेंस है, तो दैट विल नॉट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। सो सेक्शन 37 में एक एक्सप्लेनेशन लेकर आ गए और साथ में उन्होंने कहा कि अब आप किसी को भी परक्विजिट देते हो, वेदर इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ मनी, या बेनिफिट देते हो, तो अब सेक्शन 194 लेकर आ गए, आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना है। और टीडीएस भी कितना काटना है? 10%। जो इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जिनकी टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से कम और प्रोफेशन में 50 लाख से कम, उनको छोड़ के बाकी सब लोगों को टीडीएस काटना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने तो अपने एक डीलर को मैं सिंगापुर घुमाने के लिए ले गया, नो बेनिफिट वाज पेड इन कैश। मैंने अपने टूर ऑपरेटर से उसका टूर बुक कराया, उसकी टिकट बुक कराई और उसको सिंगापुर घुमाने के लिए गया। आई हैव नॉट गिवन ए सिंगल पेनी टू द डीलर इन कैश। लेकिन अब ये जो वैल्यू ऑफ टूर है, जो बेनिफिट मैं इस डीलर को दे रहा हूं, इसके ऊपर अब मुझे सेक्शन 194 में 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी आई विल हैव टू इंश्योर दैट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस परक्विजिट और बेनिफिट हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। और इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी अभी डिफेक्टिव है, तो यहां पर अगर वो इस बात को, इसका ग्रॉसिंग अप अलाउ कर दें तो एक एसएससी के लिए इजी हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक डीलर को बेनिफिट दिया 100 रुपए का, ठीक है, तो अब बेनिफिट मैंने उसको काइंड दिया, अब मुझे 10 रुपए टीडीएस जमा कराना है, तो अब मेरी सिचुएशन क्या होगी? मैं 10 रुपए उस एसएससी से रिकवर करूंगा, ओनली देन आई विल बी एबल टू डिस्चार्ज माई लायबिलिटी टुवर्ड्स टीडीएस। ठीक है, यही तरीका है ना सर। अब मान लिया मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना, तो मुझे ग्रॉसिंग अप अलाउ हो जाए, अब मैं क्या करूं, 110 और समथिंग वटेवर जो हो जाएगा उतने का खर्चा डेबिट कर लूं और 10 रुपए अपने पास से टीडीएस जमा करा दूं और 100 रुपए का बेनिफिट मैं रिसिपिएंट या डीलर को दे दूं। तो इस तरह का प्रोविजन में क्लैरिफिकेशन अगर आ जाएगी तो इस सेक्शन की कंप्लायंस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक कंप्लायंस देयर ऑफ। और जहां इन्होंने सेक्शन में वर्डिंग यूज की है कि दैट एसएससी विल हैव टू इंश्योर दैट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बेनिफिट और परक्विजिट हैज बीन डिपॉजिटेड, तो अब इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि एसएससी अपना टैक्स जमा कराए, जो रिसिपिएंट ऑफ इनकम है वो अपना टैक्स जमा कराए। तो इसके लिए थोड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। 1 जुलाई 2022 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है। 20,000 रुपए की इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। और इसमें एक क्लैरिफिकेशन और चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय की परक्विजिट है उस पर टीडीएस स्पेसिफिकली सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है। ठीक है सर। तो ये जो सेक्शन है 194, इट शुड नॉट अप्लाई टू एनी परक्विजिट और बेनिफिट विच आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। तो ये 3-4 क्लैरिफिकेशन इस सेक्शन में जरूरी है ताकि इस सेक्शन का कंप्लायंस हो पाए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 43 कैपिटल बी में, एंड दिस इज अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24। और ये बड़ा क्लियरली पहले गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है विच इज ड्यू टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक और एनबीएफसी या सिस्टमेटिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और सिचुएशन में अगर उस इंटरेस्ट लायबिलिटी विच एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च और अल्टीमेटली वो आपने उसको फर्दर लिमिट में कन्वर्ट कर लिया या विद इन योर लिमिट है वो, तो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी पेमेंट अंडर सेक्शन 43B और उसका डिसअलाउंस हो जाएगा 43B में। तो यहाँ उन्होंने एक अलग और सिचुएशन को कवर कर लिया है। इफ देयर इज एन इंटरेस्ट लायबिलिटी व्हिच इज एक्सिस्टिंग ऑन 31 मार्च और अल्टीमेटली एसएससी ने विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट डिवेंचर इशू कर दिए, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू डीम्ड पेमेंट और सेक्शन 43B में उसकी डिसअलाउंस हो जाएगी। तो ये जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24। इस बजट की जो सबसे बड़ी देन है वो है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल हो गया। सेक्शन 247 कैपिटल ए एक नया सेक्शन लेकर आए हैं विच डिफाइंस वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसमें स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया है कोड नंबर, टोकन, नॉन फंजिबल टोकन और एनी अदर डिजिटल एसेट
which may be notified by the CBDT, but which does not include Indian or foreign currency. कोई भी एसेट जो कोड के फॉर्म में हो, टोकन के फॉर्म में हो, विच कैन बी वर्चुअली ट्रेडेड, जो वर्चुअल डिजिटल फॉर्म में हो, मेरे पास फिजिकली मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल डिजिटल फॉर्म में हो, तो उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बना दिया। एक सेक्शन 115 BBH नया सेक्शन लेकर आए असेसमेंट ईयर 23-24 से। उन्होंने कहा कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की जो इनकम आएगी, इट विल बी टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट ऑफ 30% without allowing or setting off of any expenditure or allowance except the cost of acquisition of the virtual digital asset. अब यहां पर इन्होंने इनकम का हेड प्रिस्क्राइब नहीं किया कि इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, बिकॉज वर्चुअल डिजिटल एसेट इज एन एसेट, इट कैन बी ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ माय कैपिटल गेन इनकम. If I am regularly indulged into this kind of activity, that it can also be offered as part of my business income, and it can also be offered as forming part of income from other sources. ये तीनों हेड में इनकम ट्रेवल कर सकती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सेम होगा कि इसके अगेंस्ट सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करेंगे एंड नो फर्दर एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड, और इसका जो टैक्सेशन है वो 30% पे होगा. अब यहां पर एक एडवाइस लोगों ने रास्ता निकाला कि इस अमेंडमेंट का मतलब है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो ट्रांजेक्शन है अप टू 31 मार्च 2022, अब ये सेक्शन जो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है, यानी 31 मार्च 2022 तक की जितनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो ट्रांजेक्शन है उनका जो टैक्सेशन होगा वो नॉर्मल कोर्स में होगा. अगर आपके बिजनेस इनकम है तो आपको कॉस्ट ऑफ परचेज भी अलाउ होगी और साथ में आपको एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा. अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आपको परचेज प्राइस भी अलाउ होगा और साथ में एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन रिलेशन टू सेल ऑफ दैट वर्चुअल डिजिटल एसेट वो भी आपको अलाउ होगा. और अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपको इंडेक्सेशन भी अलाउ होगा. राइट, तो 31 मार्च 2022 तक आप इसको कैपिटल गेन में भी ले जा सकते हैं, बिजनेस इनकम में भी ले जा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ले जा सकते हैं, आप एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं और स्लैब रेट का बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हैं. बट आफ्टर 1 अप्रैल, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 आपको ना तो स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा ना आपको कोई खर्चा लागू होगा. ठीक है सर, तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की टैक्सेशन का नया रिजीम आ गया है 1 अप्रैल 2022 से. इट डज नॉट कमेंट अपॉन लीगलिटी और इलीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी. अब इनकम टैक्स एक्ट में ये बात बड़ी क्लियर है कि इनकम टैक्स एक्ट में एनी इनकम वेदर इट इज अर्न फ्रॉम लीगल सोर्स और इलीगल सोर्स इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट में तो आपको टैक्स लगना ही है. वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी चाहे आपकी लीगल हो या इलीगल हो, इनकम टैक्स में आपको उसके ऊपर टैक्स देना है. साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन लेकर आए हैं टीडीएस का अंडर सेक्शन 194S. 1 जुलाई 2022 से सेक्शन एप्लीकेबल है. और whenever a person who is responsible for paying a consideration with respect to virtual digital asset, तो उसको 1% टीडीएस इसका काटना है. ठीक है सर, 1% टीडीएस काटना है. और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिखी है वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है इंडिविजुअल एचयूएफ है. ठीक है सर, तो जिनकी 1 करोड़ से कम सेल है या 50 लाख रुपए से कम जिनकी प्रोफेशनल इनकम है उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपए. नॉर्मल केस में इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10,000 रुपए है. सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा. इफ द कंसिडरेशन इज पेड इन काइंड देन इट विल बी ड्यूटी ऑफ द पेयर टू इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड. यानी टीडीएस रिकवरी कराने की, टीडीएस डिपॉजिट कराने की जो जिम्मेदारी है वो पेयर की होगी. तो यहाँ पर भी अगर ग्रॉसिंग अप का फार्मूला हो जाए और व्हेन देयर आर नो आई हैव नो मैकेनिज्म टू रिकवर दैट अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द पेई, तो मेरे को सिचुएशन में क्या करना होगा. अगर वो सिचुएशन क्लैरिफाई हो जाएगी तो इस सेक्शन का कंप्लायंस जस्ट लाइक सेक्शन 194 थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक कंप्लायंस देयर ऑफ. कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर, जहां पर एनी गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट वो मेरी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है सर. नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 239 कैपिटल ए.
एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 248। सेक्शन 248 का जो सेक्शन है दैट रिलेट्स टू फाइलिंग ऑफ अपील। जब मुझे किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है अदर देन इंटरेस्ट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195, और मेरा क्लेम ये है कि सर इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो उस सिचुएशन में व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू इज कि मैं पहले उसका टीडीएस काट लूं, उसका टीडीएस जमा करा दूं, देन आई विल फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 248 बिफोर द सीआईटी अपील। फिर सीआईटी अपील उसको डिटरमिन करेगा वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और नॉट, और इफ द सीआईटी अपील डिसाइड्स कि टैक्स डिडक्ट नहीं होगा तो मेरा पैसा वापस मिल जाएगा मुझे, और वो सस्टेन कर देता तो फिर टीडीएस मेरा जमा हो जाएगा। अब इसके लिए नया प्रोसीजर लेकर आए सेक्शन 239 कैपिटल ए के अंदर। सेक्शन 248 को डिलीट कर दिया, रिपील कर दिया है। अब उन्होंने कहा कि ये जो एप्लीकेशन पहले आप सीआईटी अपील को लगाते थे, पहले आप ये असेसिंग ऑफिसर को लगाइए, असेसिंग ऑफिसर इसका ऑर्डर करेगा, और असेसिंग ऑफिसर का जो 239 कैपिटल ए का ऑर्डर होगा दैट विल बी एन अपीलेबल ऑर्डर बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आए कि असेसिंग ऑफिसर से शुरुआत कीजिए, आपको सीधा सीआईटी अपील पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन 248 को रिपील कर दिया और 239 कैपिटल ए को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक एडिशन आई है सेक्शन 68 में, एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24, और ये जो सेक्शन 68 की एडिशन है, जैसे शेयर कैपिटल के केस में 2012 में अमेंडमेंट आया कि आपको सेक्शन 68 में सोर्स तो प्रूव करनी ही करनी है, शेयर कैपिटल के केस में आपको सोर्स की सोर्स भी प्रूव करनी है। सपोज कीजिए मैंने एक लोन लिया डीसी गर्ग साहब से, और डीसी गर्ग साहब ने लोन लिया जुनेजा साहब से, या डीसी गर्ग साहब के पास फंड्स आए जुनेजा साहब से। अब जब मेरा असेसमेंट था, आई वाज ओनली रिक्वायर्ड टू प्रूव द सोर्स फ्रॉम मिस्टर डीसी गर्ग। अब डीसी गर्ग जी के पास पैसा कहां से आया, वो कहां से लाया, वो मुझे प्रूव नहीं करना था। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा सोर्स की सोर्स प्रूव करनी पड़ेगी। अगर गर्ग साहब के पास पैसा जुनेजा साहब से आया है, तो अब गर्ग साहब को ये डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कि जुनेजा साहब से जो पैसा है वो भी मेरा जेन्युइन है। उसमें भी सेक्शन 68 की जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन, क्रेडिट वर्दीनेस, ये सारी की और आइडेंटिटी, ये सारी तीनों कंडीशन अब आपको सोर्स की भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो सारे क्रेडिट के ऊपर ये अप्लाई हो गया है सेक्शन 68। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया है सर फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ये जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है सेक्शन 144 कैपिटल बी, ये पिछले साल आया था 1 अप्रैल 2021 को, और ये जो बिकॉज दिस इज एंटायरली अ न्यू रिजीम, और इस नए रिजीम के अंदर वी विल फेस लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एसएससी को भी बहुत सारी डिफिकल्टी होंगी, डिपार्टमेंट को भी बहुत सारी डिफिकल्टी होंगी, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम हमें बहुत सारे खट्टे मीठे कड़वे अनुभव होंगे, और उस खट्टे मीठे कड़वे अनुभवों के आधार पे दिस स्कीम नीड्स टू बी रिवाइज्ड, और उस सिस्टम को धीरे धीरे डेवलप होने में इट विल टेक टाइम टू डेवलप दिस एंटायर स्कीम। तो पिछले साल जो स्कीम लेकर आए थे उसमें टोटल 10 सेक्शन थे। सेक्शन 144 कैपिटल बी में 128 में स्कीम थी, और सेक्शन 9 में लिखा था कि एनी ऑर्डर पास्ड व्हिच इज नॉट इन कंप्लायंस विद द स्कीम नोटिफाइड इन दिस सेक्शन शैल बी नोन एज इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है सर, तो उन्होंने 128 जो सेक्शन था वो पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया है, नया सेक्शन लेकर आए हैं, पूरा प्रोसीजर नया दोबारा से प्रिस्क्राइब कर दिया है, एंड दिस प्रोसीजर इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ठीक है जी, अब उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले एसएससी के पास वर्चुअल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब उसको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो नई फेसलेस स्कीम में आपके पास हियरिंग की अपॉर्चुनिटी है, यू कैन टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग वर्चुअली, जो आपको फेसलेस स्कीम में मिल जाएगी। सेक्शन 9 को उन्होंने डिलीट कर दिया है, जिसने कहा था कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास हो गया विच इज नॉट इन कंप्लायंस विद द स्कीम फ्रेम्ड अंडर दिस सेक्शन दैट विल बी नॉन एज इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो अगर डिलीट भी कर दें आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस। तो ये इन्होंने स्कीम को चेंज कर दिया है, और कुछ सेक्शन थे जो फेसलेस के लिए आए, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के लिए और ट्राइब्यूनल के लिए, और उन प्रोविजंस को 1 साल के लिए 31 मार्च 2024 तक सेक्शन 92C(a), सेक्शन 140 कैपिटल C, 253 और 255, इन 4 सेक्शन को 31 मार्च 24 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। Now I move to amendments relating to charitable trust
एंड इंस्टीट्यूशंस। पिछले कुछ सालों में सर एक मिनट, जी सर, आपने कहा कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है अब मिल गई है टू द एसएससी, तो पहले जो हमें आते थे नोटिस फ्रॉम अननोन पर्संस, नोटिस जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती थी असेसमेंट की, तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कौन देगा, किसके सामने अपीयर होना पड़ेगा? जुरिसडिक्शनल के पास? अब अभी वो क्या होगा कि स्कीम में उन्होंने लिखा है कि डिपार्टमेंट अपने वर्चुअल हियरिंग के सेंटर्स भी स्टेब्लिश करेगा। अच्छा, है ना? और आपको जिस तरह से वर्चुअल हियरिंग कोर्ट में मिलती है, तो व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तो आपके पास वर्चुअल हियरिंग का लिंक आ जाएगा और वो Okay. सॉफ्टवेयर या वीडियोग्राफी जो भी होगी उसका सेटअप बना लिया जाएगा और आपको उस लिंक के थ्रू वर्चुअल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। मतलब फिजिकल नहीं होना, अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम होना। फिजिकल कुछ नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने साथ में ये कहा है कि हम अपने वर्चुअल सेंटर्स बनाएंगे उन लोगों के लिए जिनके पास वर्चुअल हियरिंग करने की सुविधा नहीं है। तो अलग अलग शहरों में वो उस जगह जाके अपनी वर्चुअल हियरिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन Okay, okay. आपके सामने कोई असेसिंग ऑफिसर नहीं होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके सामने आप वर्चुअल हियरिंग कर रहे हो वो आपको ऑर्डर पास करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब जो आपकी हियरिंग लेगा दैट मे बी अ डिफरेंट पर्सन, जो आपको ऑर्डर पास करेगा दैट मे बी अ डिफरेंट पर्सन। and sir, you will not be able to identify who is the person. उसकी ब्लर हो जाएगी, उसकी ब्लर हो जाएगी, आपकी आपकी फोटो आएगी उसमें, उसकी ब्लर हो जाएगी। ये कोई नहीं, जरूरी मैं भी नहीं है अपनी कि ब्लर कर लूंगा, क्या बात है? ना आप नहीं ब्लर कर सकते हैं। क्यों यार, क्या बात है? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जो वर्चुअल हियरिंग सुनेंगे उनके ऊपर एक काला कपड़ा डाल दिया जाएगा कि जिससे देखो सर, ये जो ब्लर होने की ऐसा बात कर रहे हैं सर, ये सिस्टम गर्ग साहब का अपना ओपिनियन है। नो मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। नहीं जैन साहब, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मैं तो ये अंदर की बात बता रहा हूँ, नहीं वो मिनिस्ट्री की ठीक बात है, बता लेकिन रहा हूँ। अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आई कि मैं मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। दिस इज द प्रपोजल। देखो मैं आपको एक बात बताऊं गर्ग साहब, मैंने आपसे कहा कि आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, है ना? क्या हुआ है? मैंने आपको कहा कि अपना माइक ऑन कर लीजिए। उसका रीजन क्या है कि हम लोगों की एक ह्यूमन नेचर है कि विदाउट आई कांटेक्ट, विदाउट हैविंग फेस, विदाउट सीइंग द पर्सन फेस टू फेस, तो हम लोग जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमें वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता कि मेरी बात सामने वाले को समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। मुझे ये भी कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता कि उसने मेरी बात सुनी भी है कि नहीं सुनी। ठीक है, तो अगर इन्होंने कहा कि उसके ऊपर काला कपड़ा ढक देंगे या उसको ब्लर कर देंगे, तो मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा चैलेंज करने के लिए। साहब मेरा तो आई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा, हाउ आई कम टू नो कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ गई। देखिए अभी अब जब ट्राइब्यूनल में आर्ग्यू करते हैं या हाईकोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, आई कीप ऑन प्लीडिंग टिल दैट टाइम जब तक मुझे ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि सामने वाले ने मेरी बात सुन ली है। नहीं जैन साहब, ब्लर करने का मीनिंग ये नहीं है कि मतलब ये तो दिखेगा कि हाँ somebody is listening to me, तो ये नहीं है कि मैं जैन साहब का चेहरा नहीं पहचान पाऊंगा। अगर ब्लर कर देंगे तो मुझे दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। साहब मेरा तो आई कांटेक्ट होना चाहिए सामने, जो भी है, लेकिन वो है सरकार की ये मंशा है ऐसी। चलो देखते हैं सर, जब थिंग्स विल कम फॉरवर्ड तब उसको देखेंगे सर। तो हम बढ़ते हैं सर ट्रस्ट की नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। और मेरे ख्याल से पिछले 10-12 साल में जितनी अमेंडमेंट इन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोविजन में आई है, और शायद ही कोई ऐसा बजट बचता होगा जो चैरिटेबल ट्रस्ट को और इंस्टीट्यूशंस को डिस्टर्ब ना करता। अच्छा, कोई नया डेवलपमेंट तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हुआ नहीं है, कोई नया लॉ नहीं है। 1961 से ये लॉ चल रहा है, सेक्शन 11, 12, 13, है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि आज की डेट में हमें कोई नई अंडरस्टैंडिंग आ गई है, और ऐसा भी नहीं है कि पिछले वाले लोग बेवकूफ थे जिन्होंने कानून बनाया था, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, और आज के लोग द करंट पीपल आर बॉर्न विद मोर विजडम, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लेकिन या तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के या लॉ फ्रेमर्स के हाथ में ट्रस्ट को लेके या तो कोई दुराग्रह बन गया है कि भाई ये जो ट्रस्ट वाले हैं सब फ्रॉड हैं और ये सब गड़बड़ करते हैं और इन सबसे हमें टैक्स लेना ही लेना है। या सर ये होशियारी बहुत करते हैं ट्रस्ट वाले, सारे ट्रस्ट वाले आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ये बटम सिंह, मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के दिमाग में जैसा आपने बोला ऐसा कोई दुराग्रह भर गया है कि जो ट्रस्ट वाले हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। गवर्नमेंट इज राइट। ठीक है सर। तो और या फिर मैं समझता हूँ कि इसको मैं दूसरी तरीके से समझूं कि शायद हमको ना ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जो प्रेजेंट लॉ फ्रेमर्स हैं उनको ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है।
ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को मैं क्यों बात बोल रहा हूँ आपको, देखिए जब आप ITR 7 भरते हो, आप ITR 7 भरते हो, अब आपका एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 और नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 है, आपका जो एप्लीकेबल ITR फॉर्म है वो ITR 7 है, आप ITR 5 में अपनी रिटर्न नहीं कर सकते, चाहे आपका 12 का रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो। द मोमेंट आप ITR 7 सेलेक्ट करते हो और उसमें सेक्शन 12 का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हो और लिखते हो कि आई एम रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉलम बंद कर देता है। तो आपकी इनकम कैसे कंप्यूट होगी, वो कहते हैं कि आप पहले ग्रॉस इनकम ले आइए, डोनेशन ले आइए, सारी ग्रॉस इनकम रिसीट साइड पे ले आइए, ठीक है, और उसके बाद जो आपके एक्सपेंडिचर हैं विच आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, उसका आप एप्लीकेशन क्लेम कर लीजिए और फिर आपकी टोटल इनकम बन गई। और फिर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का कोई डिफॉल्ट हो गया कि उसने रिटर्न टाइम से नहीं भरी या उसने ऑडिट नहीं कराया या उसकी कोई बिजनेस इनकम आ गई, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको सेक्शन 11, 12 के बेनिफिट नहीं देंगे। इट मीन्स कि आपका सारा का सारा एप्लीकेशन जो है डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। तो हुआ क्या, आप सपोज एग्जांपल से बात को समझें, एक ट्रस्ट है, उसकी टोटल 1 करोड़ रुपए की उसके पास डोनेशन आई और 1 करोड़ रुपए में से उसने 85 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है सर, 15 लाख रुपए वो 15% एक्यूमुलेट कर सकता है। अब मैंने जब अपनी रिटर्न फाइल की तो मैंने 1 करोड़ रुपए की ग्रॉस रिसीट दिखाई, 85 लाख रुपए एप्लीकेशन दिखाया और 15 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर दिया। अब सपोज कीजिए फॉर वट एवर रीजंस आइदर आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 और या मेरे को किसी तरह से 11, 12 की बेनिफिट डिनाई हो गया, तब डिपार्टमेंट मेरी इनकम कैसे कंप्यूट करता है, वो कहता है कि साहब जो 85 लाख रुपए आपने एप्लीकेशन क्लेम किया है दैट विल बी डिसअलाउड। इसका मतलब क्या होगा, मेरी इनकम कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपए। अब ट्रस्ट की सिचुएशन देखो कितनी पेक्यूलियर हो गई कि ट्रस्ट की टोटल रिसीट थी 1 करोड़ रुपए, 85 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए, 15 लाख रुपए उसके पास बचे हैं नाउ। अब उसके ऊपर 30 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ गई। अब वो 15 लाख रुपए कहां से लेकर आएगा अगर फ्यूचर में चंदा नहीं आया तो, या ट्रस्ट बंद हो गई तो अब वो 15 लाख रुपए गवर्नमेंट कहां से रिकवर करेगी। द आइडिया इज नॉट टू टैक्स द ग्रॉस इनकम, आइडिया बड़ा सिंपल है। और पेट्रोल स्पोर्ट्स प्रमोशन का केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, वहां पे उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के केस में भी आप ग्रॉस इनकम को टैक्सेबल नहीं कर सकते, आप नेट इनकम को टैक्सेबल करेंगे। और जो डोनेशन मिलती है इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेक एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन का और आपका इनकम का डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 12 में नहीं है तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगी वो इस सिचुएशन में 1 करोड़ नहीं होगी, आपकी 15 लाख रुपए होगी। 85 लाख रुपए का आप एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे और 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम आएगी। और दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ट्रस्ट का, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फंडामेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो डिमार्केशन होता है वो कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होता। डोनेशन इटसेल्फ इज ए कैपिटल रिसीट जिसको आपने टैक्सेबल कर दिया है, राइट। और जब मैं ऑब्जेक्ट के लिए खर्चा करता हूं, अब मैं किसी को ग्रांट देता हूं तो इट इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। अगर मैंने किसी की एजुकेशन की फीस भर दी, किसी का मैंने इलाज कर दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपने चंदा लिया और आगे आपने लोगों की हेल्प की, ठीक है, ये ट्रस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चंदा अगर मेरी इनकम है तो जो एप्लीकेशन दिया वो मेरा खर्चा है, जो मैंने खर्चा कर दिया चाहे वो कैपिटल अकाउंट में किया, रेवेन्यू अकाउंट में किया, वो मेरा खर्चा है, इट हैज टू बी अलाउड। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जो इनकम है वो तो सारी आपकी जो कैपिटल रिसीट थी उसको तो हम इनकम मान लेंगे और जो आपका खर्चा है उसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, दिस इज विशिएटेड, ये इस ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग, लॉ फ्रेमवर्क्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी पड़ेगी। तो अभी क्या है कि 3 रिजीम है जो प्रेजेंट इनकम टैक्स लॉ है जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करते हैं। एक रिजीम है सेक्शन 11, 12, 13 का, जिसमें सारे जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका चैरिटेबल पर्पस है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे सेक्शन 11, 12, 13 में दे आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और उनको 11, 12, 13 का अगर उन्होंने 12AA में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो इन सारे सेक्शंस को उनको बेनिफिट मिल जाएगा। इन सारे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में भी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हॉस्पिटल सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं है, वो देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो सबको एक हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट केपेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इन दोनों सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा।
और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए इसके लिए 1023C का एक रिजीम लेकर आए, जो प्रायोरिटी है कि जो 11, 12, 13 की जो कंप्लायंसेस हैं वो उतना कंप्लायंस बर्डन इन प्रायोरिटी सेक्टर्स पर नहीं होगा। जस्ट गॉट टू यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आउट ऑफ ऑल चैरिटेबल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर थे, तो इनके लिए एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट रिजीम लेकर आए अंडर सेक्शन 1023C, और उसको भी उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया कि अगर 5 करोड़ से कम आपके रिसीट्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे सेक्शन 1023C में इनकम का बेनिफिट मिल जाएंगे, आप पैन नंबर लीजिए और अपनी रिटर्न भर दीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगना। और दूसरा है जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा की, जिसमें आपको 1023C में रजिस्ट्रेशन लेना है, या फिर वो ट्रस्ट आए जो कोई मंदिर है, मस्जिद है, जो नोटिफाइड नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिनको इन्होंने गवर्नमेंट ने सेक्शन 1023C में नोटिफाई कर दिया। तो बेसिकली देयर आर 3 regimes. One is 1023 3AD और 3AE, जहां पर जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है या जो हॉस्पिटल है उसकी ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एनी रजिस्ट्रेशन। दूसरा रिजीम हुआ 1023C 4, 5, 6 और 6A, जहां पर आपको 1023C में रजिस्ट्रेशन लेना है। और तीसरा रिजीम हुआ आपका सेक्शन 11, 12 और 13 का। ठीक है सर। तो जो पहला रिजीम है जो 5 करोड़ से नीचे वाले का है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, 1023C 3AD और 3AE, उसमें कोई इस बजट में चेंज नहीं है, उसको इन्होंने टच नहीं किया है। बाकी दोनों रिजीम को इन्होंने टच किया है, सेक्शन 1023C 4, 5, 6 और 6A, और साथ में 11, 12, 13। अब उन्होंने कहा कि सब इन दोनों में ना डिफरेंस नजर आ रहा है, 1023C में कंप्लायंस डिफरेंट है और सेक्शन 11, 12, 13 में कंप्लायंसेस डिफरेंट है, तो हम दोनों को एट पार लाना चाहते हैं, दोनों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोनों सेम लैंग्वेज बोले। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको दोनों सेम लैंग्वेज बोलनी है तो आप एक ही सेक्शन रख लो ना भाई, आर यू कंफ्यूजिंग अस? आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि आप सेम सेट ऑफ रूल्स हैं, सेम सेट ऑफ कंप्लायंसेस हैं, सेम सेट ऑफ लॉ है, तो एक तरफ तो आपने उसके लिए टैक्स सेक्शन 1023C रख लिया, दूसरी तरफ आपने सेक्शन 11, 12, 13 रख दिया, तो मैं कभी 1023C पढ़ूं, कभी मैं सेक्शन 12, 11, 12 पढ़ूं। अरे जब आपको दोनों को एक जैसा बनाना है तो आप एक ही बना दो, एक को हटा लो लॉ में से, एज सिंपल एज दिस। लेकिन अब 1023 सेक्शन को देखिए आप, 11, 12, 13 को पढ़ के समझना आसान है, वहां पे सेक्शन है, सब सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, उन सबके नंबर्ड है। ठीक है, अगर किसी में कोई प्रोवाइजो है तो 1 या 2 है 3 है मैक्सिमम। अब आप पढ़िए सेक्शन 1023C को, मैं गारंटी करता हूं, आई मेक ए चैलेंज टू एवरी लर्नड चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट कि जो अपनी जिंदगी में पहली बार 1023C को पढ़े और पढ़ के समझ के बता दे। 19 प्रोवाइजो हैं एग्जिस्टिंग सेक्शन के अंदर, एक मेन सेक्शन है 1023C, उसके अंदर 19 प्रोवाइजो, और वो भी अननंबर्ड है। आपको अपने पेन से अपनी किताब में लिखना पड़ेगा, ये प्रोवाइजो नंबर 1 है, प्रोवाइजो नंबर 2 है, प्रोवाइजो नंबर 3 है, और कहीं आपसे लिखने में गलती हो गई तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होगी। ठीक है सर, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है और इसको इस साल और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सर। तो व्हाट दे हैव डन इज, सेक्शन 1023C के 3rd प्रोवाइजो में 2 नए एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, एक्सप्लेनेशन 1A और 1B। ये जो दोनों एक्सप्लेनेशन है, दीज आर एप्लीकेबल फॉर ए टेम्पल, मॉस्क, चर्च और ए गुरुद्वारा विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80G। 80G में जो नोटिफाई हुए हैं उन मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए, चर्चों के लिए ये सेक्शन आया है, एक्सप्लेनेशन आया है। उसमें कहता है कि उन मंदिरों को, गुरुद्वारों को अगर अपनी रिनोवेशन करने के लिए डोनेशन मिला है तो दैट डोनेशन कैन बी ट्रीटेड एज कॉर्पस डोनेशन, प्रोवाइडेड कि इस डोनेशन को आप उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपको मिला है। इस कॉर्पस के अगेंस्ट आप कोई डोनेशन नहीं दे सकते, इस कॉर्पस को आपको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखना पड़ेगा, and this corpus has to remain invested in any of the modes prescribed under section 11(5). ठीक है सर, ये सारी कंडीशन इस सेक्शन, इस अमेंडमेंट के साथ लगा दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जब हमें क्या होता था 11(5) में बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब मैं बिल्डिंग के लिए मैंने कॉर्पस डोनेशन लिया तो मुझे अपनी बुक्स में सामने बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी उस अमाउंट की,
ये लॉ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, रिपेयर के लिए आप डोनेशन लो, तो रिपेयर के लिए जब आप डोनेशन लोगे तो आपके क्रेडिट साइड में शुड बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एज कॉर्पस। अब यानी कि जब मैं बिल्डिंग रिपेयर के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर करूंगा तो उस रिपेयर का एक्सपेंडिचर भी मुझे अब एसेट साइड में इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग रिपेयर कुछ खड़ा करना पड़ेगा, बिल्डिंग की फॉर्म में अब मुझे वो एक्सपेंडिचर खड़ा करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट आया एक्सप्लेनेशन 1A और 1B, और सिमिलर एक्सप्लेनेशन आया 3A और 3B सेक्शन 11(1) में। जो यहाँ अमेंडमेंट है एग्जैक्टली सिमिलर अमेंडमेंट सेक्शन 11(1) में, ठीक है सर। और ये जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से, यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो किया है 1023C में थर्ड प्रोवाइजो में एक्सप्लेनेशन 4, 5 और 6 तीन नए एक्सप्लेनेशन ऐड करती है। 19 प्रोवाइजो पहले से थे, 2 एक्सप्लेनेशन थे, अलग अलग प्रोवाइजो में अलग एक्सप्लेनेशन थे, और ये 3 नए एक्सप्लेनेशन और ऐड हो गए थर्ड प्रोवाइजो के अंदर। अभी 11(2) की जो एक्यूमुलेशन होती है कि मेरी ट्रस्ट के पास चंदा आ गया और मुझे अगले 5 सालों में खर्च करना है, मेरे ट्रस्ट के पास चंदा आया, इस साल में उसको अप्लाई नहीं कर पाया, तो सेक्शन 11(2) में मुझे फॉर्म नंबर 10 फाइल करना होता है कि मैं अगले 5 साल के लिए उसको एक्यूमुलेट कर सकता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुझे स्पेसिफाई करने होते हैं, और यदि वो 5 साल में अप्लाई नहीं हुआ तो 6ठे साल में जाके वो टैक्सेबल हो जाता है। ये 11(2) की एक्सप्लेनेशन होता है। सिमिलर प्रोविजन 1023C में थे, लेकिन 1023C में मुझे कोई फॉर्म फाइल नहीं करना होता था। सेक्शन 11(2) में मुझे फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है, सेक्शन 1023C में मुझे सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना है, कोई फॉर्म फाइल नहीं करना था, ठीक है सर। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट किए इन्होंने क्या किया कि सेक्शन 1023C वाले को भी अब एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक फॉर्म नंबर 10 केस ऑफ सेक्शन 11, तो उसको भी एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और किसी भी कॉन्ट्रावेंशन के केस में 11(2) का जब भी कॉन्ट्रावेंशन होगा तो जिस साल में कॉन्ट्रावेंशन होगा उस साल की इनकम मानेंगे। और जो पहले जो मेरा रिजीम था कि 5 साल तक मुझे एक्यूमुलेट करना है और 5 साल में भी खर्चा नहीं हुआ तो 6ठे साल मेरा जाके टैक्सेबल होगा, तो इस साल उन्होंने 1 साल कम कर दिया कि 5वें साल में टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल के एंड तक आपने खर्च नहीं किया, जिस साल में 5वां साल आपका एंड हो रहा है उस साल में आपका ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन 3, 4 और 5 में, राइट। और सिमिलर अमेंडमेंट इन्होंने किया है सेक्शन 11(3) में, वहां की भी लॉन्ग लाइन सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो वहां भी जो 6ठे साल का बेनिफिट था वो अब उन्होंने हटा दिया है, ठीक है सर। तो ये सेक्शन 1023C और सेक्शन 11(3) की अमेंडमेंट है, दोनों में सेम अमेंडमेंट है। अभी तक जो ट्रस्ट हैं उनको सिर्फ ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट थी कि दे वर रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। अब उन्होंने सेक्शन 1023C का 10th प्रोवाइजो अमेंड कर दिया है। अब उन्होंने कहा है जितने भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस है, और साथ में सेक्शन 12B अमेंड कर दिया है सेक्शन 11, 12, 13 में। वहां पे उन्होंने कहा है दैट एवरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है सर। तो ये जो नया अमेंडमेंट है ये सेक्शन 12B में आया है, और साथ में 10th प्रोवाइजो टू सेक्शन 1023C। 1023C में 15th प्रोवाइजो है जहां पर पीसीआईटी के पास पावर है टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन। इन द सेम मैनर सेक्शन 12AB में सबसेक्शन 4 और 5 में पीसीआईटी के पास पावर है टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन। इन दोनों सेक्शंस को रिप्लेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब क्या कहते हैं कि व्हेन पीसीआईटी नोटिसेस एनी ऑफ द स्पेसिफाइड वायलेशन देन ही कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, या उसके पास कोई रेफरेंस आया असेसिंग ऑफिसर से अंडर सेक्शन 143(3) तब वो कैंसिल कर सकता है, और द केस इज सेलेक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ड्राफ्टेड बाय सीबीडीटी। इन तीनों सिचुएशन में पीसीआईटी कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके लिए वो एचएससी को, ट्रस्ट को नोटिस इशू करेगा, शोकॉज नोटिस इशू करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा,
और उसके बाद ही वाज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू पास एन ऑर्डर आइदर टू रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन और टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। और वो जो ऑर्डर पास होगा, जिस क्वार्टर में नोटिस इशू होगा, उस क्वार्टर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये 15th प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट किया इन्होंने सेक्शन 1023C का, और साथ में सेक्शन 13, 10 और 11, ये दो सेक्शन बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज वहां पर उन्होंने इंसर्ट कर दिए। साथ में एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया कि 40AI 40A3 ये दोनों अप्लाई करेंगे 1023C में भी और सेक्शन 11, 12, 13 में भी। और साथ में एक नया असेसमेंट ईयर 23-24 से अमेंडमेंट किया कि अब जो आपको एप्लीकेशन अलाउ होगा वो सिर्फ एक्चुअल एप्लीकेशन के बेस पे अलाउ होगा। यानी कि अगर 31 मार्च को कोई आपका एक्सपेंसेस पेबल खड़ा हुआ है जिसके लिए आपका फंड्स का आउटफ्लो नहीं हुआ, दैट विल नॉट बी अलाउड एज एप्लीकेशन। तो ये जो अमेंडमेंट है ये आपका सेक्शन असेसमेंट ईयर 23-24 से आपके एप्लीकेबल होंगे। 1023C में 19 प्रोवाइजो पहले से थे। कितने सर गर्ग साहब? 19। अब इस साल 3 और ले आए, अब टोटल हो गए 22। अब आपको पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए सेक्शन 1023C को। अब 1023C वाले के रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर दिया अंडर सेक्शन 139(4)C। ठीक है सर। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी इनकम, अगर आपने जो स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3) है, जो आपके ट्रस्टी हैं, जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा की डोनेशन दी है, उनके बेनिफिट के लिए कोई पैसा एक्सपेंडिचर कर दिया, दैट विल बी डीम्ड टू बी योर इनकम। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी बिजनेस इनकम एक्सीड 20% ऑफ द टोटल रिसीव्ड द ट्रस्ट। ठीक है सर। इस सिचुएशन में आपको सेक्शन 1023C की और सेक्शन 11, 12, 13 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी जब मैंने डिस्कशन किया कि 1 करोड़ रुपए की रिसीट, 85 लाख रुपए की एप्लीकेशन, 15 लाख रुपए एक्यूमुलेशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब भी आपको एप्लीकेशन डिनाई होता है तो आपकी इनकम कंप्यूट होती है 1 करोड़ रुपए का। तो डिपार्टमेंट ने इस बात को समझ लिया कि साहब ये गलत हो रहा है और ये 1 करोड़ रुपए पे इनकम कंप्यूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन 22 दे दिया 1023C में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट भी उन्होंने दे दिया है 13, 10 और 11 में। उन्होंने कहा कि साहब ये जो जब भी आपकी 11, 12, 13 की एग्जम्पशन डिनाई होगी या 1023C की जो एग्जम्पशन डिनाई होगी, तो उस सिचुएशन में जब आपकी कंप्यूट करेंगे तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम खर्चा अलाउ कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलाउ नहीं करेंगे। कॉर्पस के अगेंस्ट अगर आपने कोई खर्चा किया है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। आपने लोन्स और बोरिंग से कोई खर्चा किया है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। जिस एसेट्स का आप एप्लीकेशन क्लेम कर चुके हैं उसका डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे और आपको डोनेशन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो ये लॉ लेकर आए हैं, थोड़ी सी रिलीफ दी है। अभी जो 85 लाख रुपए आपके डिसअलाउ हो रहे थे, उस 85 लाख में से कुछ पोर्शन अब आपका अलाउ हो जाएगा। अब यहां पर जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जब आप मेरी कॉर्पस डोनेशन को टैक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर रहे हैं, तो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। या तो अगर आप मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं कर रहे तो आप मेरी कैपिटल रिसीट को भी टैक्स नहीं करिए, राइट। और अगर आप मेरी कैपिटल रिसीट को टैक्स कर रहे हैं देन यू कैन नॉट डिसअलाउ माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये थोड़ा सा इस सेक्शन में देखने वाली बात है। और एक जो सबसे बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन अब लेकर आए हैं सर, 115BBI, ये नया सेक्शन लेकर आए हैं विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वेदर अंडर सेक्शन 1023C और सेक्शन 11, 12, 13। उन्होंने कहा जो आपकी स्पेसिफाइड इनकम है दैट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अभी तक क्या था कि जो ट्रस्ट की इनकम बनती थी, टैक्सेबल इनकम थी, वो आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होती थी। आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मिलती थी और स्लैब रेट पे जाके टैक्स करता था। अब उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, हम 30% आपसे सीधा सीधा टैक्स लेंगे, और वो स्पेसिफाइड इनकम को उन्होंने डिफाइन कर दिया। 15% से ज्यादा अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो अभी तक जिसपे स्लैब रेट लगता था अब उस पर 30% लगेगा। सेक्शन 11, 12 का अगर कोई वायलेशन, 11(2) का अगर कोई वायलेशन हो गया तो उसकी जो इनकम आएगी उसके ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा।
अगर आपने किसी ट्रस्टी और उसके बेनिफिट के लिए कोई इनकम अप्लाई कर दी तो उस बेनिफिट की वैल्यू पे ट्रस्ट को 30% टैक्स लगेगा, और कोई एप्लीकेशन अगर आपने आउटसाइड इंडिया कर दिया उस पर भी अब आपको 30% टैक्स लगेगा। ये आ गया सर सेक्शन 115 BBI, और इस सेक्शन ने गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर कर दी है कि अब हमें ट्रस्ट से 30% टैक्स लेना है। चंदे के ऊपर 30% टैक्स भारत सरकार अब आपसे लेगी सर। और साथ में एक और 115D में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है कि 1023C के जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनको भी अब 115TD में कवर कर लिया है। 271AE ये पेनल्टी के नया सेक्शन आया है ट्रस्ट के ऊपर कि आपने अगर स्पेसिफाइड पर्संस जो 13(3) के स्पेसिफाइड पर्संस हैं उनको यदि आपने कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है सर, तो उसके लिए ट्रस्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी। फर्स्ट ऑफेंस के लिए 100% और सेकंड के लिए 200%, एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24। तो जितने भी मेजर अमेंडमेंट थे वो सारे कवर हो गए। आई विल टेक 5-10 मिनट्स मोर, और उसमें मैं जितने भी इस साल के फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट आए हैं वो सारे के सारे कवर कर लूंगा। टोटल 84 अमेंडमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय दिस फाइनेंस बिल। तो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट्स है वन इज सेक्शन 10(4)F, 56(2)(7)B, 80LA, ये सब IFSC को लेकर आए, असेसमेंट ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है। सेक्शन 10(8), 8A, 8B और 9, these will not be applicable from assessment year 23-24। सेक्शन 17 और सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ये असेसमेंट ईयर 20-21 से आया है कोविड के लिए। अगर आपको कोविड की ग्रांट मिली है कहीं से तो वो जो ग्रांट मिली आपकी जो एग्जेम्प्ट होगी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपकी एग्जेम्प्ट होगी, बाकी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। आपको कोविड हुआ है, आपको अपने एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिला है, तो बाकी जितना आपने खर्चा कर दिया बाकी ठीक है, वरना आपका सेक्शन 17 में सैलरी के हेड में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ अदर देन एम्प्लॉइज है, सैलरीड क्लास के अलावा जो लोग हैं उनको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, कहीं से कोविड का इलाज करने के लिए खर्चा मिला है, रिइंबर्समेंट मिला है, तो वो आपका उतने तक एग्जेम्प्ट होगा जितना आपने खर्चा किया है, उसके बियॉन्ड वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। आपको कंपनसेशन मिला है इन केस ऑफ डिजीज ड्यू टू कोविड, तो अगर एम्प्लॉयर से मिला है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, अगर एम्प्लॉयर के अलावा कहीं और से मिला है तो 10 लाख रुपए तक वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है सर। सेक्शन 35 में एक छोटा सा क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है। सेक्शन 50 गुडविल को लेके अमेंडमेंट है कि गुडविल जिस समय डेप्रिसिएशन अलाउ होना उस पर बंद हो गया, एट दैट टाइम इट विल बी डीम्ड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और उसको कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ले जाएंगे। सेक्शन 79 गवर्नमेंट अपने स्ट्रेटेजिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सेक्शन 79 में एक अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 79 कैपिटल ए में एक अमेंडमेंट किया है कि सर्च के केसेस में यदि कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम अनर्थ होती है तो उसके अगेंस्ट आपको किसी प्रकार का कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। 80CC-D और 80DD ये दो छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं, these are not required to be discussed in detail. Section 80IAC, now this is extended up to 31st March. Section 94 डिविडेंड स्प्लिटिंग के केस में है। सेक्शन 115 BAB मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनके केस में 15% टैक्स लगता है, इसको स्टैब्लिश करने का टाइम 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। सेक्शन 115 BVD जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का स्पेशल प्रोविजन था उसको अब डिलीट कर दिया असेसमेंट ईयर 23-24। सेक्शन 115 JC और सेक्शन 115 JAF AMT और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो पहले 18.5% था, असेसमेंट ईयर 23-24 से उसको 15% कर दिया है। सेक्शन 119 में CVDT को पावर दे दिया 234F की फीस को माफ करने के लिए। सेक्शन 156 कैपिटल ए में अगर कोई IBC की प्रोसीडिंग्स में इनकम टैक्स की डिमांड को अगर रिड्यूस करा जाता है तो असेसिंग ऑफिसर उसका रिवाइज्ड नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156 कैपिटल ए इशू करेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 170 और 170 कैपिटल ए ये अमालगमेशन के केसेस में सेक्शन एप्लीकेबल था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन द केस ऑफ मारुति सुजुकी लिमिटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कंपनी है जो बाद में किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई और पुरानी जो कंपनी विच सीज टू एग्जिस्ट उसके नाम पे अगर कोई नोटिस इश्यू हो गया
बिकॉज दैट कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, तो वो नोटिस आपका इनवैलिड है, नॉनेस्ट इन द आइज ऑफ लॉ है। ठीक है सर। अब उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने रिवर्स कर दिया सर, और सेक्शन 170 कैपिटल ए में अगर कोई मर्ज्ड कंपनी के नाम पे भी कोई नोटिस इश्यू हुआ होगा, दैट विल एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तो सेक्शन 170 और 170 कैपिटल ए में 1 अप्रैल 2022 से अमेंडमेंट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है पीसीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी लिमिटेड, उसको रिवर्स कर दिया है। सेक्शन 175 में सेक्शन 179 में डायरेक्टर से अब वो फीस रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन 194 आईए में एक अमेंडमेंट किया है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदते समय जो आप टीडीएस काटते हैं 1%, वो अब आपको स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर उस पे आपको काटना है। सेक्शन 194 आईबी और सेक्शन 206 एबी में छोटे छोटे अमेंडमेंट है। सेक्शन 206 एबी में जो पहले 2 साल के नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न थे, अब उस कंडीशन को घटा के 1 साल का कर दिया गया। सेक्शन 201 में एक छोटा सा अमेंडमेंट है। सेक्शन 245 एमए में छोटा सा अमेंडमेंट है। सेक्शन 263 में टीपीओ के ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर अब कमिश्नर के पास आ गई है। प्रोसिक्यूशन में क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है 4 सेक्शनों में, 271C पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में, 271C, 276 AB, 276 कैपिटल बी, 278, 278 AA। 272 कैपिटल ए में जो नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी 100 रुपए रोज लगा करती थी, वो अब 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए रोज हो गई है सर। ठीक है सर। 285 कैपिटल बी में जो सिनेमा ऑटोग्राफर्स के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होता था, अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, वेब सीरीज बनाने वाले हैं, उन सबके ऊपर, या इवेंट मैनेजर है उनके सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सरचार्ज 15% रह गया है सर। और एओपी जो सोसाइटीज हैं उनके ऊपर सरचार्ज 15% रह गया है। सो ये मैंने पूरा बजट में टोटल 84 अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल 2022 में डायरेक्ट टैक्सेस के आए हैं, and I have been able to complete and cover all entire 84 amendments. With these words, I conclude my deliberation here, or I once again convey my thanks to the entire office bearers and team of Urban State CP Study Circle for inviting me here amongst all of you and giving me this opportunity. Thank you very much. जैन साहब, अभी जो है we can take further 10 minutes from your side, sir. जितना मर्जी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नहीं सर, हमें 5:30 तक आपको फ्री करना होगा एज पर आवर कमिटमेंट। ओके महिमा, छोड़ेंगे नहीं गोयल साहब आपको। this is my humble request to all members. Kindly ask your queries. If you are having any query, you may ask from our Jain साहब। महिमा, सबको आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। यस सर। प्लीज। आज सतीश मित्तल जी के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए मुझे। So there is a query from Ajay Kumar ji. Sir, can you please again guide for applicability of section 68 for loan borrowing or any other sum, whether this also apply for borrowing from banks, NBFC, secured advances from government authority or PSUs? देखिए, बैंक्स वगैरह के केस में तो जनरली सेक्शन 68 के प्रोविजंस इतने हार्श नहीं होते, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के केस में तो देखिए बैंक्स तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, रजिस्टर्ड विद आरबीआई हैं। ठीक है, तो बैंक्स के केस में नॉर्म्स इतना नहीं है। बैंक्स के केस में तो आपने सैंक्शन लेटर दिखा दिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दी, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अगर असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट इंक्वायरी करनी होगी तो बैंक से कर लेगा। ठीक है, बात रही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, जो बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं विच आर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ठीक है, तो उनके केस में भी बर्डन इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो छोटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसके केस में आपको तीनों कंडीशन, आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्दीनेस, तीनों आपको प्रूव करनी पड़ती हैं। और अजय जी, ये आप क्लियर समझ के चलिए कि मैंने जब आपको कहा कि अब आपको सोर्स प्रूव करनी पड़ेगी। जो पुराना हमारा एस्टेब्लिश लॉ है कि आपने सोर्स प्रूव कर दी, दैट्स ऑल। अब मैंने गर्ग साहब से पैसे लिए, गर्ग साहब पैसे कहाँ से लेके आए, गर्ग साहब ने पैसे ऑन कर लिए कि हाँ जी मैंने दिए हैं, तो मेरा काम खत्म हो गया, मेरी एडिशन नहीं हो सकती। अगर गर्ग साहब के पास पैसे ठीक से नहीं आए तो गर्ग साहब के साहब खोलो और गर्ग साहब की एडिशन करो। तो दैट वाज द लॉ।
अब सिचुएशन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जब अपना केस कराना है तो मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास कहाँ से आए, गर्ग साहब के पास आए हैं, और गर्ग साहब को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि गर्ग साहब के पास कहाँ से आए हैं, और अगर गर्ग साहब ये प्रूव नहीं कर पाए तो मेरे केस में एडिशन हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये लॉ जो है जो पहले शेयर कैपिटल के लिए था, नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। तो सेक्शन 68 की एडिशन अब आपको सोर्स की प्रूव करने की रिक्वायरमेंट आ गई है। ठीक है सर, और एडवांसेस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज पीएसयू में इतना रिगर्स नहीं होते, जो प्राइवेट पार्टी से आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें रिगर्स ज्यादा होते हैं। जी महिमा जी। जी सर, any other questions from any other members? Please, you can ask. In case cryptocurrency sold by 31st March, whether the income is considered under the, देखिए ये रमेश कुमार साहब का क्वेश्चन है, और मैंने अपने डेलिब्रेशन में बड़ा क्लियरली बताया था कि whether your income is from legal source or illegal source, it is taxable income। ठीक है, आपके पास इनकम आई है, इट हैज टू बी टैक्स्ड। अब वो क्रिप्टो करेंसी से आई है, कैसे भी आई, तो 1 अप्रैल से आपके पास स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया कि 3% पे आपको टैक्स देना है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा आपको और कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब 31 मार्च से पहले आप उसके अगेंस्ट खर्चा भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और इन माय ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो आप भी आपका केस है, इट कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज ए बिजनेस इनकम, इट कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, एंड इट कैन आल्सो बी क्लेम्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो तीनों हेड आपके लिए खुले हैं, और आपके केस में जैसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो, कितनी एसएससी ने ट्रांजैक्शन की है, कितनी उसने कैपिटल ईयरमार्क की है, क्या उसने सेटअप खड़ा किया है, उसके बेसिस पे आप हेड ऑफ इनकम डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको इंडेक्सेशन लेना है तो आप इंडेक्सेशन भी ले सकते हैं, लेकिन ओनली अप टू 31 मार्च 2022। virtual digital asset will be classified as a capital asset, there is absolutely no doubt of this। जैन साहब जी सर, आपने अपने डिलिवरेशन में बोला था कि इफ एनी एसएससी हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न, ही कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न सर। हाँ जी। तो सर मेरे को ये कंफ्यूजन है कि जब मैंने रिटर्न अपनी फाइल की नहीं है, हाँ, तो उसको रिटर्न को अपडेटेड कैसे माना जाएगा, नंबर 1। और क्या ये हमारा एक जो है ना बिलेटेड रिटर्न का जो मेरा टाइम ओवर हो चुका होगा, तो क्या ये उसका ये बाईपास माना जाएगा अपडेटेड रिटर्न? देखिए जब ये एक आपको नया रिटर्न भरने के लिए प्रोविजन दिया है। देखिए जब आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी, उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन द सेम मैनर इसका नाम रखा है अपडेटेड रिटर्न, वो सिर्फ नाम है, उससे आप कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, रिटर्न विल बी गवर्न्ड बाय द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ, और लॉ की प्रोविजन ये है कि अगर आपने 139(1) की और 139(4) की भी रिटर्न फाइल नहीं करी, देन यू विल बी एबल टू फाइल योर रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A। ठीक है सर, तो ऐसा को 139(8)A में अगर आपने पहले ना तो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की, ना आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की, ना आपने रिवाइज रिटर्न फाइल की, तो भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई एब्सोल्युटली बार नहीं है इसमें। लेकिन सर उसमें तब भी मुझे क्या एडिशनल टैक्स लायबिलिटी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी देना ही पड़ेगा, तो ही भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे, तब नहीं कर नहीं पाएंगे। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। अब इसमें मैंने जैसे आपसे डिस्कशन करने के लिए बात ओपन हुई, और मैंने अपना इसको एक हिडन मैनर में मैंने कवर भी किया था कि पहले हम क्या करते थे कि अगर कोई एसएससी हमारे पास आया और उसकी रिटर्न फाइल होने से छूट गई, हाँ जी, ठीक है, रह गई फाइल होने से, तो हमारे पास आया तो हम क्या करते हैं उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाते हैं, अप टू डेट उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी वगैरह निकालते हैं और उसका टैक्स जमा करा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमने अपनी टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, और कल को इन फ्यूचर मेरे पास अगर 148 का नोटिस आएगा, जी सर, तो मैं वो अपनी सेम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दूंगा 148 के कॉन्सिक्वेंसेज में, और सिचुएशन में मुझे पेनल्टी लगने की चांसेस इसलिए नहीं है बिकॉज माय टैक्स लायबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज प्रायर टू इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। नोटिस इश्यू होने से पहले मेरी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है, और वहां पर उस सिचुएशन में मुझे कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी भी नहीं लग सकती गवर्नमेंट। उस सिचुएशन में वहां मुझे पेनल्टी भी नहीं लग पाएगी और एडिशनल टैक्स भी नहीं लगेगा। तो यू विल हैव टू डिसाइड इन योर केस कि मुझे क्या करना है। ओके, दैट्स गुड सर। कोई और क्वेरी है क्या महिमा? नहीं, नो सर। Yes, I got a query. Yes sir, please continue. Okay, please ask, please. Respectable Jain sir, you have said that in updating of the return, we have to pay the additional tax. Yes. So it presumes पहले हमने टैक्स दिया हुआ है। हाँ. Is it so?
मैंने आपको एग्जांपल जब दिया तो मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि उन्होंने बड़ा क्लियरली किया है कि आपने जो एडवांस टैक्स जमा कराया उसका इनपुट मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपका जो टीडीएस टीसीएस है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपका जो रिलीफ अंडर सेक्शन 1990 ए है वो आपको मिल जाएगा, जो आपका मैट का क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा। तो वहां आप क्या तक करेंगे, ठीक है अपनी सर। तो अपनी टोटल इनकम लेंगे, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, उसकी मेरा लायबिलिटी क्वेश्चन, कंप्यूट करेंगे और उसमें से आप टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो जमा कराना है, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स जमा कराना है। माय क्वेश्चन विच फॉल्स फॉर योर कंसिडरेशन इज दैट मैंने पहले रिवाइज रिटर्न भी कर चुका हूँ हाँ, और फिर अब मैं अपडेटिंग करना चाहता हूँ। कर सकते हो सर आप। अच्छा, और कोई जरूरी नहीं है कि पहले मैंने रिटर्न नहीं फाइल की और वही मैंने अभी करनी है। कोई, आप हर सिचुएशन में जा सकते हो, आपने रिटर्न फाइल नहीं की तब भी जा सकते हो, आपने लेट फाइल की तब भी जा सकते हो, आपने रिवाइज कर दी तब भी जा सकते हो। तो ये एडिशनल आपको एक नया अवसर मिल गया, लेकिन यहाँ पर इसमें एक कंडीशन ये है 139(8)(a) में that this return can be filed only for the benefit of the department, any for the only Yes. for the benefit of the government. ठीक है, ये बेनिफिट दे एसएससी के देंगे। बेनिफिट के लिए नहीं हो सकती, मैं मतलब आपको रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। दैट्स ओके विद मी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैंने पहले जो है टैक्स दिया और उसे रिवाइज रिटर्न करी या नहीं करी, जरूरत नहीं पड़ी, तो वो एक्सेप्ट भी हो गया, हाँ हाँ, प्रोसेसिंग भी हो गई। फिर उसके बाद उसमें 140(a) की पेमेंट भी एक्सेप्ट होगी मेरी। उसके बाद जब मैं अपडेटिंग करता हूँ तो वहां 148 आप 140(a) वो आप डिसअलाउ कर देते हैं। नहीं डिसअलाउ नहीं करेंगे, 140 उसमें मिल जाएगा आपको, जो आपने अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है और जो आपकी प्रोसेस हो चुकी है 143(1) में, जी तो 143(1) में जितना आपको टैक्स चार्ज 140 का उसने क्रेडिट दिया है ओके, ना, वो सारा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा। वो मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। There's a information for all members. Actually, we are going to organize a further webinar as on 9th Wednesday, coming Wednesday, day after tomorrow. This will be on budget provisions, IGST, On indirect GST, taxes. yes, indirect taxes, and GST, new provisions of GST. And CA Ramakshaji will take this webinar. Over to you, Mahima. Thank you, sir. Respected CA Rajiv Jain ji and other senior professional members of this esteemed profession, it's my privilege to propose a vote of thanks on this webinar conducted on direct tax proposal introduced in Finance Bill 2022. I, CA Mahima Garg, on behalf of Urban Estates CPE Study Circle, thank Rajiv Jain ji, sir. Thank you so much for sharing your knowledge with us on Finance Bill. And I would like to thank to all the participants and professionals for making this session an interactive and a wonderful one. Thank you so much for taking out time with us, sir. Rajiv Jain ji, sir. Thank you so much. It's all my pleasure. Thank you very much. Special thanks from my side, sir. धन्यवाद। नमस्कार जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। जैन साहब के बजट के ऊपर तो दर्शन हो ही जाते हैं जैन साहब के। जी जी जी, ठीक है सर, नमस्कार। साल में एक बार दर्शन हो जाते हैं जैन साहब के। माय प्लेजर सर, मुझे आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। बड़ा अच्छा आपका डेलिब्रेशन रहता है। चलो, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। जैन साहब और जी जुनेजा साहब सर, जय सिया राम। अब मित्तल साहब की आवाज आ गई।